اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ سن لیجیے۔ اگر میں کہوں مجھے اعتراض ہے تو کیا آپ شانزے سے اپنا موجودہ تعلق ختم کر لیں گے؟ اس کے سوال نے مخالف کو صرف ٹھٹکایا نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھی دہکا کے رکھتی تھیں۔ تو میں کہوں گا کہ نہیں، صرف یہی نہیں، میں اس گستاخی کی سزا کے طور پر آپ سے بھی شادی کروں گا اور آپ کو اعتراض کا بھی حق نہیں دوں گا۔ جواب تھا کہ تماچا۔ سلا تو جیسے ہل کر رہ گئی، اس کی آنکھیں اس عزت افزائی پر دہک کر انگارہ ہو گئی تھیں۔ بی بی صاحبہ، آپ کو شانزے بی بی بلا رہی ہیں، کہتی ہیں چادر اوڑھ کر خاموشی سے آئیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ دونوں حویلی کے پچھواڑے باغ میں آئی تھیں۔ آپ جائیں، سڑک کے دوسری جانب کالی گاڑی کھڑی ہے، بی بی وہیں آپ کے منتظر ہیں۔ ملازمہ نے لکڑی کے سال خولدہ پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھول کر اسے ایک بار پھر باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سرگوشی میں ہدایت دی۔ سلا نے محض سر ہلا دیا۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے انا کا سفر۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو پھر اس ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے موم؟ لیگ پیس بہت نفاست سے چھری کی مدد سے کاٹ کر کانٹے میں پھنسا کر اس نے منہ میں منتقل کیا تھا۔ وہ صرف ترہ دار نہیں تھی، بہت اعلیٰ ذوق کی مالک، کسی حد تک مغرور، خود پسند بھی تھی، خوبصورت تھی، بلکہ بے حد خوبصورت تھی، جب بھی ہر جگہ توصیف اور ستائش سے نوازی جاتی۔ یہ تعریف وصول کرنا اس کی خوبصورتی کا حق تھا۔ یہ اس کا قطعاً ذاتی خیال تھا۔ مغرور اور بے نیاز تھی جب بھی اپنے آگے کسی کو نہ گردانتی، مگر وہ شانزے تھی جو اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، کچھ اس طرح سے اس پر فدا ہوئی تھی، پھر اس عشق کا تھوڑا اثر اس کے اندر بھی منتقل ہو گیا تھا۔ شانزے کو یقین تھا یہ اس کی دعا کا نتیجہ تھا جب قبولیت کی سند پا گئی تھی۔ ان کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ 2 سال ان کے ہم نوالا ہم پیالہ کی حیثیت سے گزرے تھے۔ شانزے کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، جبھی وہ روایتوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس سلا مشہور و کامیاب صنعت کار کی بیٹی تھی۔ وہ صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ آفاق تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا۔ ڈیڈی سیرا کو بھی ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ انوکھی ضد لگا کر بیٹھ گئی، ہاسٹل میں شانزے کے ساتھ رہنے کی ضد، جسے کم از کم موم نے بالکل پسند نہیں کیا تھا۔ ایک عام سی لڑکی شانزے کے لیے اپنی بیٹی کا یوں دیوانہ ہو جانا انہیں کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس کی اس فرمائش کو سنتے ہی ان کی دیپریاں چڑھنے لگی تھیں۔ حرج کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے سلا، کسی بھی لحاظ سے یہ بات تمہیں ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے خواب بہت اونچے ہیں تمہارے لیے۔ تم اپنا برائٹ فیوچر چھوڑ کر ایک معمولی لڑکی کی خاطر 2 سال ہاسٹل میں سڑنا چاہتی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ انہیں یہ بات اس قدر برہم کر چکی تھی کہ ہاتھ میں موجود اپنے پسندیدہ جوس کا گلاس انہوں نے زوردار آواز کے ساتھ ٹیبل پہ دھر دیا تھا۔ مگر سامنے ان کی بیٹی تھی جس کے انداز سے تلخی اور برہمی جھلکنے لگی تھی۔ وہ معمولی لڑکی آپ کی بیٹی کی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے اہم ہونے کی یہی سب سے اہم دلیل ہے۔ اور ڈیڈی، میں فی الحال صرف ہاسٹل جاؤں گی، ہاں بعد میں اگر موم چاہیں تو UK بھی چلی جاؤں گی، مگر فی الحال ہاسٹل۔ اس کا انداز قطعی اور 2 ٹوک تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، کرسی دھکیل کر وہاں سے ایک جھٹکے سے چلی گئی۔ مما نے تیش بھرے انداز میں ڈیڈ کو دیکھا، ایسا تیش زدہ انداز جس سے بے بسی بھی چھلکتی تھی، گویا وہ ڈیڈ سے سلا کی رویے کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ ماں بیٹی کے اس جھگڑے میں ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی محض کاندھے اچکا چکے تھے۔ آج ہم کالج سے واپسی پر سپر مارکیٹ چلیں گے۔ کلاس بنک کر کے وہ دونوں اس وقت کینٹین میں تھیں۔ سلا کے ہاتھ میں چیز برگر تھا، ساتھ میں پیپسی کا ٹین پیک۔ شانزے بھی یہی کھا رہی تھی، اسے ہمیشہ ہی سلا کو فالو کرنا اچھا لگتا تھا۔ مارکیٹ؟ اب کیا لینا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے تو مارکیٹ گئے تھے۔ مارکیٹ کا سنتے ہی شانزے پریشان سی ہونے لگی، جس کے جواب میں سلا نے اسے گھورنا فرض سمجھا۔ خبردار جو جانے سے انکار کیا ہو، میرے کزن کی شادی ہے، مجھے اپنے لہنگے کے ساتھ میچنگ جوتے چاہیے، جیولری بھی لے لوں گی، اور وہ تمہارا کھڑوس منگیتر ہر روز یہاں شہر کی وزٹ کو نہیں نکلا ہوتا، جو باہر جانے کا سنتے ہی جان نکلنے لگتی ہے تمہاری۔ بلا جھجک اسے جھاڑنے لگی۔ شانزے کی کیا مجال تھی برا مان جاتی، من منا کر کہا تو بس اتنا،
यार वो पिछली बार भी उन्होंने हमें देख लिया था। हाँ तो कहा तो नहीं था ना कुछ, उल्टा तुम्हें चाय पिलवाने आइसक्रीम खिलाने की ऑफ़र दे रहा था। वैसे बड़ी झूठी है तो शान से, हमेशा तो इसकी बेहसीला ताल्लुकी के रोने रोती रहती है। तब तो वो बात अधूरी छोड़कर वो इसे घूरने लगी। शान से बुरी तरह से झेंपी थी, रियली कसम से यार। उस दिन तो इनके यकसर बदले हुए अंदाज ने मुझे भी कुछ कम हैरान नहीं किया। वो तो वहाँ हवेली में भी सामना होने पर कभी मुझसे बात नहीं करते। शानजे के लहजे में अब भी हैरत नुमाया थी, अलबत्ता सिला के चेहरे से तनफ़ुर और नख़वत छलकने लगी। अच्छी भली खूबसूरत हो तुम, वो खुद है क्या जो इतनी बेनियाजी बरतता है? हाँ, ओ जट देहाती, मैं तो अब भी कहती हूँ साफ इनकार कर दो इससे शादी करने से। सिला के पास ऐसे मुफ्त के मशवरे वाफर मिकदार में जमा रहा करते थे। शानजे तड़प सी गई। ऐसे तो मत कहो सिला डियर, इतना बुरा भी नहीं है बेचारा, मुझे तो अच्छा ही लगता है। सिला ने इस आखिरी बात पर खुसूसी तौर पर नख़वत ज़दा अंदाज में सर झटका था। शानजे से दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं बीता था तब इसकी पहली बार बिल्कुल इत्तफ़ाक़िया हैदर से मुलाकात हो गई थी। शानजे से नोट्स लेने हॉस्टल आई थी, इसके लिए नोट्स हमेशा शानजे ही बनाया करती थी। उस दिन शानजे अपने साथ फ़ाइल लाना भूल गई थी, तभी सिला को इसके हमरा हॉस्टल आना पड़ा था। नोट्स वाली फ़ाइल लेकर वो वापस आ रही थी कि शानजे भी इसे गेट तक खुदा हाफिज़ कहने चली आई थी। हालांकि कॉरिडोर से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी तो इसे अंदर से ही रुखसत कर दिया करती थी, मगर शानजे की बौखलाहट ने सिला को हैरानी में मुब्तला कर दिया था। क्या हुआ यार, जंगल में शेर देख लिया क्या? इसने मजाक उड़ाया था। शानजे की फ़क रंगत पर इसकी हंसी निकल गई थी। इसे आदत थी मामूली बातों पर हद से ज़्यादा घबरा जाने की। यही समझ लो, शेर भी खूनखार, सामने हैदर खड़े हैं। अब मेरी खैर नहीं है सिला, इन्हें मेरा यूं बेमहार बाहर आ निकलना पसंद नहीं। शानजे ने सर पर ओढ़े दुपट्टे को इस तरह भी कैफियत के ज़ेर असर खींच कर पेशानी तक किया। हैदर के देख लेने के बायस वो मंजर से गायब होने की पोजीशन में भी नहीं रही थी। अलबत्ता खौफ ने हालत ज़रूर पतली कर दी थी। सिला को इसका यही खौफ गुस्सा दिला रहा था। इसने गर्दन मोड़कर गेट के पार देखा। हॉस्टल के आगे सब्ज़े की बाट थी। इसके पार खड़खड़ाते लिबास में मलबूस, ग्रेप जारों से टेक लगाए, बड़ी बड़ी मूँछों वाला दराज कद नौजवान खड़ा नजर आया। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में यकीनन गुस्से की ही सुर्खी थी। ऊंचा, लंबा, देहाती सा। वो शानजे के मंगेतर की हैसियत से सिला को एक आंख नहीं भा सका। इससे पहले वो शानजे के पास इसकी तस्वीरें भी देख चुकी थी। तभी इसने नाक भूं चढ़ाई थी और बिला झिझक इसे मंगनी ख़त्म करने का मशवरा भी दे चुकी थी। हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता सिला, बिलफर्ज मैं हैदर को पसंद ना आती, मुझसे शादी ना करते, तब भी मुझे उम्र भर उन्हीं के नाम पर बैठना था। उसकी बात सुनकर सिला ने उनकी रवायात पर बेहद तनकीद करते हुए शानजे को भी काफ़ी बातें सुनाई थी कि वो कुएं की मेंढक है जिससे रवायात अजीज़ हैं, अपना मफाद नहीं, वगैरह वगैरह। सिला को ख़ुद भी ये सारी बातें याद थीं जब इस टकराव पर इसने हैदर से उलझने की खामखा कोशिश की थी, बल्कि शानजे के बकौल इससे पंगा लिया था। तो आप हैं शानजे के मंगेतर? वो तिल मिलाते हुए जाके इसके सर पे सवार हुई थी। अंदाज में नागवारी तमस्खर के साथ अपनी ज़ात का ज़ौम तकब्बुर भी शामिल था। इसका इत्माद ऐसा काबिल दीद था कि वह सामने वालों के छक्के छुड़ाने की सलाहियत रखती थी। हैदर ने चौंक कर फिर भवें सुकेट कर इसे बगौर देखा। बेहद फैशन ज़दा लड़की, हेयर कट किए हुए रेशमी खूबसूरत बाल, बेतहाशा हसीन और सुबक नकोश, पूरे चेहरे पर गोया हुक्मरानी करती हुई आंखें, और इसकी नज़रें एक मर्द की नज़रें थीं। हाँ, आपको एतराज़ है? हैदर के लहजे में मखसूस किस्म की रौनत और बेनियासी थी। मगर सिला कहाँ खातिर में लाती जब इसने बेपनाह एतमाद के साथ कंधे झटक दिए थे। अगर मैं कहूँ मुझे एतराज़ है तो क्या आप शानजे से अपना मौजूदा ताल्लुक़ ख़त्म कर लेंगे? उसके सवाल ने मुखालिफ को सिर्फ ठटकाया नहीं था, इसकी आंखें भी दहका के रख दी थी। ऐसा भी होता है, औरत अपने दायरे से बाहर निकले तो फिर नुकसान का खमियाजा इसे ही भुगतना पड़ता है। हैदर के जवाब ने यही वाज़ेह किया था। तो मैं कहूँगा कि नहीं, सिर्फ यही नहीं, मैं इस गुस्ताखी की सज़ा के तौर पर आपसे भी शादी करूँगा और आपको एतराज़ का भी हक़ नहीं दूँगा। जवाब था कि तमाचा। सिला तो जैसे हिल के रह गई। उसकी आंखें इस इज़्ज़त अफजाई पर दहक कर अंगारा हो गई थी। शट योर माउथ मिस्टर हैदर, तुम हो क्या चीज़? कभी आईने में सूरत देखी अपनी?
वो फट पड़ी थी और लड़ने मरने को तैयार थी। इसके बरक्स शानज़े हरासा थी। बड़ी मुश्किल से सिला को खींच तान के वहाँ से ले गई और घंटों के हिसाब से मिन्नत तरले करके इसे मनाया था। जाहिल, घटिया इंसान, अपने आप को समझता क्या है आखिर? सुलगती और चीखती रही थी। तुम्हें अभी कुछ कहना ही नहीं चाहिए था सिला। शानज़े के चेहरे पर बेबसी, बेचारगी थी। अभी हैदर से इसे पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिलना था। तुम ठीक कहती हो, मुझे इस मनहूस के मुंह लगना ही नहीं चाहिए था। डैम इट, गुस्से से कहती सिला ने तो वो मामला वहाँ ख़त्म कर दिया था। मगर हैदर हज़म नहीं कर सका था। इस बात का अंदाज़ा सिला को बहुत बाद में जाकर हुआ था। हालांकि अगली ही मुलाकात में जो खालिस्तान इत्तफाकी थी, हैदर अपने रवैये की बहुत शाइस्तगी से माजरत कर चुका था। इस बार उनका टकराव मार्केट में हुआ था। शानज़े को ज़बरदस्ती साथ लिए विंडो शॉपिंग करती फिर रही थी जब एक दुकान से निकलते इसका हैदर से तसादुम हो गया। ये टकराव इतना शदीद था कि सिला की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। शॉपिंग बैग इसके हाथ से छोड़कर पैरों में जा गिरा। हवास ठिकाने आने के बाद इसे रूबरू पाते मुश्तिल नज़र आने लगी। तुम? आंखें निकालकर जिस तरह गुर्राई थी, सबसे ज़्यादा शानज़े घबराई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट मैम। हैदर ने बेख्तियार दिफाई मफाहिमती अंदाज में दोनों हाथ उठाए। खुश अखलाक़ी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, कैसी हैं आप? इस बदमिजाजी के जवाब में इसका सामान उठाकर बड़े आजाना अंदाज में इसे पेश करते वो कितने रसान से कह रहा था। सिला ने अपने बैग्स झपटे और शानज़े का हाथ पकड़कर बरहम अंदाज में अपने साथ घसीट लिया। वो इतनी खफा थी कि इसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। शानज़े, आप अपनी डियर फ्रेंड से मेरी सिफारिश कर देना प्लीज़। हैदर ने इन्हें चंद कदमों में ही जा लिया था और इतनी लजाजत से बोला कि शानज़े तो गुंग होने लगी, क्योंकि जानती थी कि आजिज़ी इंकसारी कभी इसके मिजाज का हिस्सा नहीं रही थी। अलबत्ता सिला के चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार थे। देखें मिस्टर, खामखा चिपक जाने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसने जिताना ज़रूरी ख्याल किया मगर वो शर्मिंदा नहीं हुआ। मगर मेरी मजबूरी है, आपसे बिगाड़ नहीं सकता। सर खुजाकर यकसर बदले हुए अंदाज में बेबसी समोकर बोला तो सिला ने इसे तीखी नज़रों से घूरा। मजबूरी? और वो भी आपकी? इसका लहजा सरासर तंज़ आमेज़ था। हैदर ने जवाब में कहकहा लगाया, यार साली आधी घरवाली होती है। मैं चाहता हूँ, मगर मैं शानज़े की बहन नहीं, जस्ट फ्रेंड हूँ। इसने तस्हीह की तो हैदर ने बेपरवाही से कांधे झटक दिए थे। जो भी हैं, मेरे लिए बहुत अहम है। कौन? शानज़े? सिला के अंदाज में खफीफ सी शरारत थी। बहरहाल वो किसी बात के पीछे पड़ने की कायल नहीं थी। जवाब में हैदर की आंखों में अजीब सी तपिश उतर आई थी। इस सवाल के जवाब को मैं किसी ख़ास वक्त के लिए उठा के रखता हूँ। इसकी मुस्कुराहट भी अजीब थी, जिसे सिला ने समझा और जाना ही नहीं बल्कि कोशिश ही नहीं की। शायद वो फितरतन बेपरवाह और बेनियाज थी। हालांकि एक औरत को बेपरवाही, बेनियाजी अक्सर मामलात में सूट नहीं करती, इसके लिए शदीद नुकसान का बाइस बनती है। चलें, बेगम से रोनमाई के वक्त कह दीजिएगा। वो इसी बेपरवाह अंदाज में हंसी। आपका हुक्म, सर आँखों पर। हैदर ने नहायत फरमा बरदारी का मुजाहिरा करते सरे तस्लीम खम कर दिया था। यूँ वो तलखी और चपकलश ख़त्म हो गई जिसका आगाज़ पहली मुलाकात में हुआ था। हैदर इन्हें कॉफ़ी पीने या आइसक्रीम खाने पर ज़ोर डालता रहा था, मगर सिला पर उजलत सवाल थी। ड्यू रही आप पर। और सुने, आप अगर ये अपनी भारी भर का मूछें कटवा दें तो कुछ भले लगेंगे। यकीनन। जाते जाते वो इसे छेड़ने से बाज नहीं आई। दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी के लिए इसके नज़दीक मर्द औरत की तखसीस नहीं थी। ये इसके माहौल का भी असर था और जहन की ख़राबी भी। मगर इस्लाम में अल्लाह ने कुछ हद बंदियाँ कायम की हैं जिन्हें फलांगने वाले नाफरमान कहलाते हैं और काबिल गिरफ्त ठहरते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगली मुलाकात में जब इसने हैदर को मोछों के बगैर देखा तो हैरान हुए बगैर रह नहीं सकी। ज़ोर से हंसकर शरारत आमेज़ अंदाज में बोली, अरे वाह, आप तो माशाल्लाह बड़े फर्माबरदार शौहर साबित होने वाले हैं। जवाब में हैदर की निगाहों की मर्दानगी के मखसूस बेबाक अंदाज ने इसे बहुत तफसीलन देखा था। तो फिर गौर कर लेना जल्दी से। ये तो शानज़े का काम है। मैं तो इसे अब भी समझाती हूँ कि कर ले गौर, बेचारी मशरक़ी लड़की एक ही खूंटे से बंधी रहना चाहती है। हैदर की ज़ुमाइनी बात को समझे बगैर अपनी हाँके गई, जबकि शानज़े इसके जितनी बेवकूफ़ नहीं थी।
इसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। हैदर ने भी होंठ भींच लिए थे। शायद नहीं, यकीनन इसे सिला की आखिरी बात ने नागवारी बख्शी थी। इन गर्मियों की छुट्टियों में आप शानजे के साथ हमारे यहाँ आकर ठहरें। हैदर ने इसे खासी ताख़ीर से मुखातिब किया था, मगर सिला के चेहरे पर तमस्खुर फैल गया था। आपके गांव? मरना जाऊंगी मैं वहाँ इतनी गर्मी में। छुट्टियों में तो हम हमेशा यूके जाते हैं, अब भी वहीं का इरादा है। हमारी हवेली में भी हर किस्म की सहूलतें हैं। चलें, ज़्यादा ना सही, चंद दिनों को तो आए ना। वो इसरार किया गया। सिला ने मुरव्वतन हामी भर ली। मुझे लगता है हैदर से अब तुम्हारी दोस्ती हो गई है। फिर अब क्या हर्ज है इस बात के बारे में? इसने अपनी ज़िद पूरी की थी और शानजे की खातिर अपने घर के ऐश व आराम छोड़कर शानजे के पास हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। शानजे की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, मगर हैदर के साथ इसकी सुलह भी इसे कुछ कम सरशाल नहीं कर रही थी। दोस्ती कहाँ यार, मैं तो तुम्हारी वजह से इस घोंचों का कुछ लिहाज करती हूँ, वरना पसंद वसंद तो मुझे अब भी नहीं है। मेरी ऑफ़र अब भी बरकरार है। कह दो इनकार। अपने बेहद स्मार्ट एंड हैंडसम भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगी। इसके लहजे में सिर्फ शरारत नहीं थी, सच्चाई का भी रंग गालिब था। जिन दिनों उनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ था, उनकी एक दूसरे से मोहब्बत या गानगत के मुजाहिरों की बदौलत उनके क्लास फेलो ने अज़राह मजाक वो बात कही थी जिसे बाद में शानजे ने दिल पर लिख लिया था। यार, सना की बात काबिल गौर है। मैं सोच रही हूँ हम एक ही आदमी से शादी कर लें ताकि हमें कोई एक दूसरे से अलग ना कर सके। शानजे की संजीदगी से की गई बात के जवाब में इतना झल्लाई थी कि हाथ में मौजूद भारी भरकम किताब इसके सर पर दे मारी थी। बको मत, ये बात महज मजाक की हद तक ही ठीक थी। शौहर शेयर करने की चीज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मर्द की इस्लाम में एवं ही 4 शादियों की इजाज़त है। वो चमक कर बोली तो सिला ने इसे घूरा और बात ख़त्म करनी चाहिए। वो आला ज़र्फ़ औरतें होंगी और तुम्हारे मामले में मैं बहुत आला ज़र्फ़ हूँ। शानजे ने शरारती मुस्कुराहट समेटा तो सिला इसे आंखें दिखाने लगी, मगर वो परवाह किए बगैर अपने सूटकेस से तस्वीरों का एल्बम निकाल लाई। यार, तुम एक नज़र हैदर को देखो तो। हमारे गांव की सारी लड़कियां इस गबरू जवान पे मरती हैं, और जब इस गबरू जवान की सिला ने तस्वीर देखी तो कैसे बिदक गई थी। इस पर गांव की लड़कियां ही मर सकती हैं। मैं शहर की तरहदार आला चॉइस रखने वाली लड़की हूँ। ख़बरदार, जो आइंदा तुमने इतनी फजूल बात की हो तो। इतना ही मेरे साथ रहने का शौक़ है तो अपने पेंडू को गुड बाय कह दो। रियली, मैं अपने भाई के लिए ले आऊँगी तुम्हें। अब कि वो संजीदा थी जबकि शानजे का मुँह लटक गया था। तुम्हें हैदर के गुस्से का पता नहीं है। जान से तो मार सकता है, मुझे किसी और का नहीं होने दे सकता। फिर यार, इसका फ़ायदा भी तो नहीं है ना कोई। मेरा मकसद तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे घर नहीं, क्योंकि तुम तो बाद में ससुराल सुधार जाओगी। चलो, तुम्हारी खातिर मैं शहरियार को घर दामाद बनने पर फोर्स करूँगी। बहुत पसंद करता है मुझे, शायद मान जाए मेरी बात। वो खिलखिलाई थी और अपने कज़न का हवाला दिया जिससे इसकी निस्बत तकरीबन तय थी। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती हो, घर के बजाय दिल में गुंजाइश निकालो मेरी जान। शहरियार को मुझसे शेयर कर लो, मैं तुम्हारी खातिर घर से भाग आती हूँ। शानजे अब भी मजाक नहीं कर रही थी। इसकी संजीदगी ने ही सिला को गंभीर संजीदगी में मुब्तला किया था। इसकी सारी चौंचाली और मजाक धरा रह गया था। इसने पहली बार इसे बेहद खफकी से देखा। तुम इस कदर फजूल बात भी कर सकती हो शानजे? शानजे की तो जान ही इसकी नाराज़गी के आगे हवा होने लगती थी। जब इस वक्त भी वो सटपटा गई थी। मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स। मुझे ऐसा मजाक भी नहीं पसंद। तुम्हारे दिल में गुंजाइश हो तो हो, मेरे दिल में नहीं है, इसने बेहद सख्ती से कहा था और उठकर वहाँ से चली गई थी। उफ़, इतना यूनिक स्टाइलिश ड्रेस कहाँ से लिया? सिला कॉलेज से लौटी तो शानजे के बिस्तर पर पड़ी वो शर्ट उठाकर देखते हुए 27 इसकी आंखों में सिमट आई थी। वो ब्लैक इलाकाई ड्रेस था जिस पर शोख रंगों के धागों से बहुत खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। पूरे कुर्ते पर नन्हे नन्हे शीशों का जाल फैला था। हल्की सी जुम्बिश पर भी जगमगाहट बखेरता था, और यही इस लिबास की खूबसूरती थी। अम्मा ने भेजा है, आज ही हैदर देकर गए हैं। शानजे आज तबीयत की ख़राबी के बाइस कॉलेज नहीं गई थी, तो यूँ कहो ना मंगेतर साहब तोहफ़ा लाए थे। आंखें नचा कर बोली। शानजे ने ठंडी सांस भरी। लाए तो वही थे, मगर भेजा हुआ अम्मा का है। हैदर को तो ये भी इल्म नहीं होगा कि शॉपर में होगा क्या। वैसे तुम्हारा बिलखसूस पूछ रहे थे, शानजे ने ख़ास तौर पर जिताया जिसे सिला ने अपने ध्यान में महसूस ही नहीं किया था।
सुनो, फेयरवेल पार्टी में यही ड्रेस पहन रही हो? ओके, सिला बोली। इतना पसंद आया है तुम्हें सिला, तो तुम ही रख लो यार। ये देखो, मैचिंग चप्पल भी है। शानजे ने दूसरा शॉपिंग बैग उठाया और जूते का डब्बा खोलकर वैसी ही रंगीन धागों की कढ़ाई से मुज़य्यन नाजुक से लेदर चप्पल सामने की, जो सूट से मैच कर रही थी। सिला की आंखें चमक उठी। वाह, अमेजिंग यार, सो ब्यूटीफुल। इसने फौरी तौर पर अपने जूते के स्ट्रैप खोलकर अपना दूधिया सफ़ेद मखमल जैसा नरम गुदास पैर खुशनुमा चप्पल में अटकाया। चप्पल जैसे एकदम अनमोल सी हो गई। ज़बरदस्त सिला, मुझे तो लग रहा है ये बनाई ही तुम्हारे लिए गई है। देखो कितना जच रही है तुम्हें। शानजे ने दिल से तारीफ़ की थी और बेसाख्ता खिलखिलाई। अपने पास रखो इसे, मैं बस एक बार ही पहनूंगी। शानजे को दोनों चीज़ें इसकी अलमारी में रखते देखकर इसने बेख्तियार टोका था। नहीं, अब ये तुम्हारी हुई। वो मुस्कुरा दी। इतनी फ़राक दिली अच्छी नहीं होती शानजे डार्लिंग। सिला ने नसीहत करना ज़रूरी ख्याल किया। मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में फ़राक दिल हूँ। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। शानजे के मान यकीन पर सिला ने कंधे उचका दिए थे। उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो छुट्टियाँ शुरू हो गईं। इसी रोज़ हैदर आन धमका था, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। वो शायद सिला से ही मुखातिब था, लेकिन मैं तो आपको मना कर चुकी हूँ। इसने साफ इनकार कर दिया। ये तो नहीं होना चाहिए। आप हमें मेज़बानी का शर्फ तो बख्शें। यकीन करें, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। फिर ये बहस तवील होने लगी, जिससे आजिज़ होकर सिला ने यह कहकर हामी भर ली कि मम्मी से बात करूँगी, जिसकी इसने फ़राख दिली से इजाज़त दे दी। हाँ, तो आप कर लें बात आंटी से। चाहें तो शानजे को भी साथ ले जाएं अपने घर। मैं शाम में आप दोनों को पिक कर लूँगा। वो बहुत इत्मीनान भरे अंदाज में कहकर चला गया, जबकि वो झुंझला के रह गई। यार, ये तुम्हारा फियांसे भी अजीब लसूड़ा आदमी है, जान को आ जाता है कसम से। शानजे कुछ कहे बगैर बस दांत निकालती रही। फिर घर आने पर मॉम से एक बार फिर ज़ोरदार बहस हुई थी। हरगिज़ भी इसे यकसर गैर और अनजान लोगों में भेजने पर आमादा नहीं थी, और वो महज शानजे की वजह से बहस किए जा रही थी। शाजी भी तो हमारे घर आती है ना, घंटे 2 घंटे को आती है। तुम रात और दिनों को जाओगी, कोई तुक नहीं है? क्यों तुक नहीं है? वैसे तो आप बहुत लिबरल बनती हैं। मुझे स्टडी के लिए तन्हा यूके भेज सकती हैं, यहाँ अपनी फ्रेंड के घर नहीं। वाई, इसे वाकई गुस्सा आने लगा था। ख्वामखा की ज़िद फजूल थी। ये एक यकसर मुख्तलिफ बात है। फिर वो लड़का तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? फियांसी की फ्रेंड से इसे भला क्या लेना देना? मम्मी ने अपने एतराज़ की असल वजह बिलाखिर बयान कर दी, और सिला ने जैसे सर पीट लिया था। इसने सोचा था इसे असल बात मम्मी को नहीं बतानी चाहिए थी। मैं हैदर की वजह से नहीं, शानजे की खातिर जा रही हूँ। माइंड इट। वो तिल मिलाने लगी। तुम हॉस्टल शानजे के साथ ही इतना अरसा रही हो, अब ये चौंचले ख़त्म कर दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने झड़क दिया था और वो गुस्से में आ गई। मुझे हर सूरत जाना है मम्मी, मैं बता रही हूँ। डैड से मैंने बात कर ली है। इन्हें बहरहाल आपकी तरह खामखा एतराज़ नहीं है। पैर पटक कर कहती वो अपने कमरे में आ गई। वहाँ शानजे इसकी वार्डरोब खोले इसके कपड़े बैग में रख रही थी, गोया इसकी तैयारी में मसरूफ़ थी। इसे देखकर मुस्कुराई। मिल गई इजाज़त? इजाज़त ही इजाज़त है यार, डोंट वरी। इसने अपना मूड बहाल कर लिया। वो शानजे पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मम्मी आमादा नहीं थी। इसने शानजे पर हमेशा अपनी फैमिली का तासर ब्रॉड माइंडेड लोगों का डाला था, और ये सच भी था। इसके ख्याल में कभी कभार मम्मी पर ही दकिया नौसियत का दौरा पड़ जाता था, वो भी सिर्फ इसके मामले में। ये ऐसे में वो ज़िद में आकर हर वो काम लाजमी किया करती थी, वो भी किसी नफ़ा नुकसान के एहसास से बेनियाज होकर। शाम का वक्त था। फ़ज़ा परिंदों के परों की काट से बोझल थी। दूर कहीं से कोल्हों के चलने की यासियत तामेज़ आवाज़ भी फ़ज़ा में गूंजती थी। माहौल में हब्स था, चहार सो गुबार फैला हुआ था। ये तीनों अगले दिन दोपहर के वक्त हवेली पहुँचे थे। ये हवेली वैसी नहीं थी जैसे सिला के तसव्वुर में आबाद थी, बड़े बड़े दालानों बरामदों वाली, जिसकी दीवारें संगे मरमर की तो रंगीन शीशों की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। ये आम सी हवेली थी, अलबत्ता सहन बहुत वसी रकबे पर फैला हुआ था, और यहाँ दरख्तों की बहुतात थी। हर किस्म के दरख्त, जिनके पत्ते सहन के फर्श पर उड़े फिरते थे, जिन्हें एक मुलाजमा लंबे झाड़ू की मदद से वक्फे वक्फे से समेटती, मगर हवा के एक ज़ोरदार झोंका फिर से आंगन को खुश्क पत्तों से भर जाता। इन्हीं दरख्तों के नीचे चंद चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिन पर हवेली की बुज़ुर्ग ख़वातीन विराजमान थीं।
जो रिवायती रेशमी कपड़ों और जेवरात से लदी फंदी नहीं थी, उनके मलबूसात मौसम की मुनासबत से थे। एक शानजे की वालदा और दूसरी ताइमा यानी हैदर की अम्मा थी। दो जवान लड़कियां थीं जिनका तारुफ हैदर और शानजे की भाभियों के तौर पर सामने आया था। मौसमी फलों के टोकरे वहाँ मौजूद थे और भाभियाँ अपनी निगरानी में ये फल धुलवा कर अंदर फ्रिज में रखवा रही थीं। बुजुर्ग ख़वातीन अचार डालने का एहतमाम कर रही थीं। शानजे के साथ सिला का भी वालहाना इस्तकबाल हुआ था। तेरी शहरन सहेली वाकई बहुत सोहनी है शाजी, मेम है बिल्कुल। ताई माँ ने ख़ास तौर पर सिला को गले लगाकर भींच भींच कर प्यार किया था। उनके सादा और पुरखलूस अंदाज के बावजूद सिला को उनका ये मिलने का उजड़ तरीका ग्रां गुजरा था। एमी तो मैं इसकी इतनी तारीफ़ें नहीं करती थी ताई माँ, यूँ ही आशिक तो नहीं होगी इस पर, बिल्कुल शहज़ादी लगती है ना। जवाब में शानजे का जोश देखने लायक था। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी हुई है। जब ताई माँ के बाद शानजे की अम्मा ने भाभियों ने से गले लगाकर प्यार किया तो बेजारी से कहती शानजे के करीब हुई थी। ये भी यहाँ से जाँ बख्शी कराने का एक बहाना था जिसे समझकर शानजे खिसिया सी गई। सॉरी यार, अब अंदर चलते हैं। इसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। चाय पियोगी या शरबत बनवा लूँ? इसे कमरे में लाकर शानजे ने पंखा एसी एक साथ चला दिया। शरबत? नो, चाय बनवाओ, मैं जब तक बात ले लूँ। वो अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। नहाकर बाहर आई तो कमरे में शानजे नहीं थी। नीम तारीख कमरा और एसी की कूलिंग इसके अंदर सुकून सा उतरने लगा। स्विच बोर्ड के नज़दीक आकर इसने कुछ बटन दबाए तो कमरा रोशनियों से जगमगा उठा। इसने बाल तौलिए की कैद से आज़ाद करके झटके से पुश्त पर गिराए। हेयर ब्रश उठा लिया, तभी हल्की सी थपथपाहट दरवाजे पर हुई थी। आ जाओ भाई, तुम्हें इजाज़त की भला क्या ज़रूरत? इसने बाल सुलझाते हुए हैरानी से कहा। असल हैरानी इसे इस वक्त हुई शानजे के बजाय हैदर ने अंदर कदम रखा। जी मेरा भी यही ख्याल है, मगर सिला ने इसे घूर कर तंबीह करती नज़रों से देखा। मैं समझी शानजे है, आपको इजाज़त की ज़रूरत भी इस वक्त नहीं होगी जब इस कमरे में मेरे बजाय सिर्फ शानजे होगी। इसने गोया जिताया था। हैदर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। इसका सूटकेस साइड पर रख दिया। मेरे लिए तो शानजे और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। सिला ने देखा इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। इसे तो हैदर के बदले हुए अंदाज, लहजे, नज़रों ने झुलसा के रख दिया था। वो एकदम ठिठक गई। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो भड़क उठी। हैदर ने जवाबन इसे अजीब नज़र से देखा। गुस्सा क्यों करती हैं मादाम? इससे आप ये नतीजा भी अक्स कर सकती हैं कि आप मेरे लिए शानजे की तरह काबिल एहतराम हैं। बात का सीधा मतलब निकाल लें, फिर कहेंगी गलती हमारी है। वो शर्म, खिफ़त और सुबकी से मुंजमद हो गई थी। हैदर इस पर एक तंजिया निगाह डालकर जा चुका था। अगले 2 दिन वो इसे नज़र नहीं आ सका। सिला ने इस बात को भी ज़्यादा हवास पर सवाल नहीं किया। वजह इसकी फितरी बेपरवाही नहीं, शानजे की फैमिली का बेहद मोहब्बत आमेज़ रवैया था। वो इस मोहब्बत भरे माहौल में किसी हद तक मगन हो गई थी। इसी शाम इसने आंगन की धुलाई करती मुलाजमा के हाथ से पानी का पाइप पकड़ते शानजे के लत्ते लेने शुरू किए थे। तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई थी, यहाँ अपनी हवेली में लाकर कैद कर दो। तुमने अपने पिंड की सैर नहीं करानी मुझे। मैं आज ही वापस जा रही हूँ, मसनूई खफकी से कहते हुए पाइप का रुख उसकी तरफ किया था और पानी की मोटी धार ने शानजे को भिगो डाला। शानजे तो झट परे हट गई। इसी पल अचानक आ जाने वाला हैदर इस जद में आया और सर तापा भीग गया। सिला ने एकदम बौखलाहट में मुब्तला होकर पाइप फेंक कर खिफ़त से इसे देखा। आई एम सॉरी, इट्स ओके, और जाकर तैयार हो जाएं। मैं आपको खेतों बागात की सैर करवा लाता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुके बगैर चला गया था। शानजे ने मुतहय्यल नज़रों से अपने कमरे की जानिब जाते हैदर फिर सिला को देखा था। देखो कितना बदल गए हैं ये। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ तुम्हारी जगह ये हरकत मुझसे हुई होती कितना जलील करते ही मुझे। सिला के कंधे पर हाथ रखकर हैरत भरे अंदाज में बोली। मेहमान को इतनी गुंजाइश तो मिलनी ही चाहिए। सिला सिर्फ यही कह पाई। वजह सिर्फ यही नहीं है स्वीट हार्ट। शानजे ने आंखें नचाई थीं। सिला चौंक उठी। मतलब जो बंदा किसी लड़की की सरसरी सी फरमाइश पर मूछें कटवाते, जबकि वो मूछ नहीं तो कुछ नहीं की कहावत पर अमल भी करता हो, फिर नाक पर गुस्सा धरा रहने के बावजूद इस लड़की की बदतमीज़ी को फ़राख दिली से माफ़ कर दे और इसकी गुस्ताखाना हरकत यानी पानी से शराबोर करने के बावजूद पिंड घुमाने की ऑफ़र भी करे, तो इसके दिल में कुछ तो काला होगा ना।
वो मुस्कुराहट दबाए हुए थी। सिला ने पहले इसका हाथ झटका, फिर इसे खूनखार नज़रों से घूरा। शेम ऑन यू शांसी, वो बंदा तुम्हारा फ्यांसी है। और कुछ नहीं, जाके तैयार हो जाओ, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने का कह गए हैं। शांजे ने इसे कमरे की जानिब धकेला तो वो एकदम हैरानी से पलट आई थी। क्या मतलब? तुम साथ नहीं चलोगी? नहीं, हमारे यहाँ खुलेआम लड़कियों का यूँ फिरना मायूब समझा जाता है। जवाब शांजे के बजाय हैदर ने दिया था। कपड़े बदल कर आ गया था। बालों की नमी ताज़ा गुस्ल की गवाह थी। सिला की पेशानी पर एकदम शिकने पड़ती चली गई। यानी आप ये कहना चाहते हैं हैदर साहब कि शांजे की आपकी नज़र में इज़्ज़त है और मेरी? देखिए मिस सिला, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये मेरी इज़्ज़त का ही सबूत है कि मैं आपसे। हाँ बोलें, क्या सबूत है मेरी इज़्ज़त का आपके नज़दीक? सिला ने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया। हैदर ने एक नज़र शांजे को देखा जिसके चेहरे पर ठहराव था, आंखों में बेचैनी इस तरह नुमायाँ था। इसे यकीनन इन दोनों का मुतवक्के ज़ोरदार झगड़ा खौफ कर रहा था। शांजे तुम जाओ, अम्मा बुला रही हैं तुम्हें। शांजे चौंकी, कुछ कहे बगैर तेज़ी से पलट गई। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, करेंगी इस इज़्ज़त को कबूल? हैदर अब इत्मीनान भरे अंदाज में इसकी तरह मुतवज्जा था। इसकी लौ देती आंखें इसके वजूद पर थीं। सिला के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। इसके ठिठक कर हवन्नक नज़रों से इसे देखा। इसे संजीदा पाकर वह जैसे गुस्से से उबल पड़ी थी। बट नॉनसेंस हैदर साहब, मैं पूछती हूँ ये क्या बेहूदगी है? ये गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? सिला मैडम, शादी की ख्वाहिश करना कोई नाजायज़ तो नहीं? इसे हलक के बल चीखता पाकर वो इसे सुकून से बोला था जिस अंदाज में इसने सिला से बात की थी वो कुछ और तिल मिलाई। अगर आप शांजे की फ्यांसी ना होते तो इस बदतमीज़ी पर मैं आपका सर फाड़ देती। सिला ने फुनकार ज़दा आवाज़ में कहा। गम और गुस्से की ज़्यादती से वो सुर्ख हो रही थी। चलें, इसी ताल्लुक़ के सदक़े कुछ और इनायत कीजिए, यानी शादी की इनायत। वो मुस्कुराहट दबाए इसका कबीदा खातिर तासुरात से गोया हिज़ उठा रहा था। किचन से निकलकर छोटी भाभी इसी सिमत आ रही थी। इसे तो शायद परवाह भी ना होती। सिला कुछ और खौफ नज़र आने लगे। होंठ भींचे तेज़ी से मुड़कर अपने कमरे में जा घुसी, मगर इसके बाद भी बहुत देर तक शदीद तैश की कैफियत में मुट्ठियाँ भींचकर अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश करती रही थी। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है आखिर, इतना गुस्सा? वो आनन फानन जाने को तैयार हुई थी। शांजे की मिन्नत समाजत भी इसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकी थी। इसका मूड इतना ख़राब था कि शांजे बुखलाई जा रही थी। कुछ तो बताओ सिला, यहाँ किसी की कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? शांजे अब वाकई रो देना को थी। मैं तुम्हें बता दूंगी शांजे, मगर प्लीज़ फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाने दो। इसने आखिरी सूट भी बैग में रख कर ज़िप बंद की। ठीक है, मैं ताई माँ से कहती हूँ, हैदर छोड़ाएंगे तुम्हें। शांजे का चेहरा बुझ गया था। वो कुछ बताने पर आमादा नहीं थी तो शांजे की मजाल नहीं थी कि इसरार करके ज़ोर ज़बरदस्ती से उगलवा लेती। इस पर कब शांजे का ज़ोर चला था? वो तो हमेशा सिला की मर्ज़ी के मुताबिक ही सर झुकाती आई थी। इसकी मोहब्बत ने हमेशा इसे इस लड़की के आगे सरनगो रखा था। यही उनके साथ और दोस्ती के कायम रहने की वजह थी, वरना सिला की मिजाज की हाकमियत कब का इसे शांजे से दूर ले जा चुकी होती। वो ख़ुद पसंद थी, सिर्फ ख़ुद से प्यार करने, ख़ुद को अहमियत देने की कायल थी और बस। नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना। मम्मी को कॉल करती हूँ, ड्राइवर भेज देंगी। वो अपना सेल फ़ोन उठाकर बटन पुश करने लगी। अच्छा, मैं अम्मा को बता दूँ कि तुम जा रही हो? पज़मोर्दा सी बाहर निकल गई। सिला का राब्ता नहीं हो पा रहा था मम्मी से जब भी वो कमरे से बाहर निकल आई। यहाँ गांव में सिग्नल्स के बहुत प्रॉब्लम थे। कमरे से निकलते पहला टकराव हैदर से हो गया। तो मुझसे डर कर भाग रही हैं आप? हालांकि बज़ाहिर ऐसी बुज़दिल तो नहीं लगती। इसका लंबा चौड़ा वजूद सिला के आगे दीवार बन गया था। जब ही इसकी पेशानी पर नागवारी की शिकनें पड़ गईं। रास्ता छोड़ो मेरा। सिला को जितना गुस्सा आया था वो इस लिहाज से तल्ख हुई। अगर मैं कहूँ तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर आकर ख़त्म होता है तो फिर? इसकी आंखों में अपनी ज़ात का ज़ोम था। सिला का जैसे इस बात ने दिमाग ख़राब करके रख दिया। अपनी बकवास बंद करो, समझे? और ये डायलॉग अपने म्यार की किसी लड़की से बोलना। मेरा स्टैंडर्ड इतना घटिया हरगिज़ नहीं।
غیظ و غضب سے سرخ چہرہ لیے جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی، اور اس کی بات نے مشتعلی ایسا کیا تھا۔ اس دوران حیدر کے چہرے نے کتنے ہی رنگ بدلے تھے، سارے رنگ توہین و سبکی کے احساس کے تھے، جو یقیناً خطرے کی علامت تھے۔ بہت غرور ہے تمہیں خود پر، اس غرور کو اگر میں نے خاک میں نہ ملایا تو حیدر نہ کہنا، بھینچے ہوئے سرد لہجے میں کہتا وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا۔ سلا نے حقارت بھرے انداز میں سر کو یوں جھٹکا جیسے اس کی دھمکی کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہو۔ یہ اس کا حد سے بڑھا ہوا ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی تھا کہ وہ محض حیدر پہ کچھ جتانے کی خاطر وہاں پہ رک گئی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ بزدل ہے نہ خائف، اور یہ اس کی غلطی تھی۔ عورت چاہے جتنی بھی پر اعتماد مضبوط ہو، مگر حیدر جیسے شیطان صف ملت اپنے ناپاک ارادوں سے اسے زیر کر ہی دیتے ہیں۔ وہ نادان تھی جو اس بات کو نہیں سمجھ سکی، یا پھر اسے اپنی عقل پر ناز تھا۔ تھینک گاڈ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا، میں اتنی ہرٹ ہو رہی تھی قسم سے۔ اسے اطمینان آمیز انداز میں پلنگ پر بیٹھ کر پاؤں جھلاتے اور تربوز کھاتے دیکھ کر شانزے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ سلا نے سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے شہرام کی بسم اللہ کی تقریب 2 دن بعد ہے، میں چاہتی تھی تم اس میں ضرور شریک ہو۔ ہاں تو ہوں گی نا، ڈونٹ وری، ویسے بھی میں تمہیں خفا کر کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اطمینان سے مسکرا کر بولی۔ اس نے حیدر پر کچھ جتانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس میں اور شانزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شانزے کے ساتھ کھیتوں باغات میں جا کر حیدر کو نیچا دکھانا مقصود تھا۔ اوکے فائن، تم رکو، میں بھی اماں سے پوچھ کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے حیدر کہیں باہر گئے، یہ وقت مناسب ہے۔ شانزے یقیناً اس کی ناراضی کے خیال سے خائف تھی جب ہی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ سلا کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تم مجھے کیا نقصان پہنچاؤ گے حیدر؟ تمہاری دکھتی رکھ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ مطمئن تھی، نہیں جانتی تھی چوہی بلی کے اس کھیل میں جیت کس کی ہوئی ہے۔ اگلے چند لمحوں میں دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے اندر جھانکا تھا۔ بی بی صاحبہ، آپ کو شانزے بی بی بلا رہی ہیں، کہتی ہیں چادر اوڑھ کر خاموشی سے آئیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا انداز سرگوشی سے مشابہ تھا۔ سلا کو حیرت نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی شانزے اب گھر والوں کی مرضی کے بغیر خاص طور پر حیدر سے چھپ کر اسے باہر لے کر جائے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا دوپٹہ کھول کر ذرا سلیقے سے اوڑھ لیا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتی وہ دونوں حویلی کے پچھواڑے باغ میں آئی تھیں، جس کے اطراف چار دیواری اتنی بلند تھی کہ گویا حدیں آسمان کو چھوتی محسوس ہوتی تھی۔ دھول مٹی میں اٹے پیپل، سنبل اور صنوبر کے لاتعداد درخت ساکن کھڑے تھے۔ خشک پتوں کے ڈھیر جمع تھے جو ان کے پیروں تلے چرمراہٹ کی آواز نکالتے اپنا وجود کھو رہے تھے۔ آپ جائیں، سڑک کی دوسری جانب کالی گاڑی کھڑی ہے، بی بی وہیں آپ کے منتظر ہیں۔ ملازمہ نے لکڑی کے سال خوردہ پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھول کر اسے باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سرگوشی میں ہدایت دی۔ سلا نے محض سر ہلایا اور اسے اعتماد سے پر انداز میں قدموں کو آگے بڑھا دیا۔ ملازمہ کی بتائی ہوئی بلیک مرسڈیز واقعی سڑک کے پرلی جانب بورڈ کے درخت کے نیچے موجود تھی۔ یار اتنی رازداری، اف، مجھے تو قسم سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کو نکلی ہوں۔ دروازہ کھول کر دھپ سے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جواب میں خاموشی تھی۔ گاڑی کا ماحول پرسکون، نیم تاریک اور اے سی کولنگ کے باعث بے حد ٹھنڈک آمیز تھا۔ کچھ وہ کڑی دھوپ اور چلچلاتی تیز روشنی سے آئی تھی جب ہی فوری طور پر صورتحال سمجھنے سے قاصر رہی، مگر اس وقت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب اس نے اپنے مقابل شانزے کے بجائے حیدر کے لمبے تڑنگے وجود کو براجمان دیکھا تھا۔ اس میں ہرگز بھی کوئی شک نہیں، آپ بلا شبہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر ہی جا رہی ہیں۔ وہ اس کی طرح سختہ زدہ تھا، نہ اس کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ جب اسی اطمینان بھرے انداز میں کہتے اس کا گال چھوا تو جیسے سلا کا یہ سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ نہ صرف بدک کر فاصلے پر ہوئی بلکہ بپھرے ہوئے انداز میں اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ تم نے چیٹ کیا ہے مجھے، کہاں لے جا رہے ہو اس طرح؟ وہ بدحواس تو تھی ہی، ساتھ میں روحان سی بھی ہو گئی۔ صورتحال کی گھمبیرتا اس کے اوسان خطا کر چکی تھی۔ گھبراتی کیوں ہو بولڈ لڑکی، تمہیں جہاں بھی لے جا رہا ہوں کچھ وقت اکٹھے گزار کر واپس لے آؤں گا، ڈونٹ وری، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ سلا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خوف سے پھٹی پھٹی نظروں میں غیر یقینی لیے حیدر کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ خوف کی شدت سے کانپنے لگی حیدر طنز سے مسکرایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کر چکا ہوں، باقی کے ارادے بھی پورے کر لوں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس کے لہجے میں صرف زوم و نخوت نہیں، نفرت بھی تھی۔
सिला को पहली बार अपना आप इतना कमज़ोर बेबस महसूस हुआ तो रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें दौड़ने लगी। गैर महसूस अंदाज में दरवाजे की जानिब सरकी थी, मगर हैदर इससे गाफिल नहीं था। जब इसे बहुत बेदर्दी जारहाना अंदाज में अपनी जानिब खींचा कि वो पूरी नहीं तो किसी हद तक ज़रूर इसकी गोद में समा गई थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदना चाहती हो? हड्डी पसली टूट जाएगी तुम्हारी। ये शौक़ पूरा कर लेना वापसी पर, अभी तो तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है। वो इसके बालों में मुंह देकर सरगोशियाना अंदाज में बोला। इसके हाथों की गिरफ्त में न कोई नरमी थी न गुंजाइश। सिला की जान पर बन आई। जो इस वक्त इसकी पोजीशन थी वो इस वक्त इस कदर ऑकवर्ड थी कि इसे सुबकी के एहसास से रोना आने लगा। जब ही एक बार फिर अपने वजूद की पूरी ताकत सर्फ करके इसकी गिरफ्त से निकलने को फड़फड़ाई थी, हैदर को इस पर यकदम गुस्सा आया था। अगर तुम इंसान नहीं बनी, मैं यहीं ड्राइवर की मौजूदगी की परवाह किए बगैर तुमसे बदतमीज़ी शुरू कर दूंगा, जो तुम्हारी बोल्डनेस के बावजूद तुम्हें यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है फजूल हरकतें बंद करो। वो बोला नहीं था, फुनकारा था। सिला सुबकी और ज़िल्लत के साथ शर्म से भी कट मरी थी। आंसुओं ने इसके गले में फंदा डाल दिया था। बेचारगी की इस कैफियत में सिर फड़फड़ा के रह गई थी। मुझे छोड़ दो, मैं बाहर कूदने की कोशिश नहीं करूँगी, इसने बामुश्किल गले से आवाज़ बरामद की थी। हैदर ने कुछ कहे बगैर अपने हाथ हटा लिए। वो सूरत से फासले पर हुई और अपना रुख बदल कर आंसुओं को बहने दिया। इसका चेहरा धुआं धुआं था। इसे नहीं खबर थी कि गाड़ी कितनी देर यूं ही फर्राटे भलती दौड़ती रही। वो तो बस सरासीमा से खुद पर बीत जाने वाली इस क़यामत पर लर्ज़ाओं परेशान थी। मान गाड़ी एक झटके से रुकी। इसने चौंक कर खिड़की के पार निगाह की। ये एक वीरान मगर सब्ज़ इलाका था। फ़ज़ा में दरख्तों के पत्तों की हवा से हिलने की सरसराहट के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। दरवाज़ा खटाक की आवाज़ से खुला तो सिला ने वहशत ज़दा नज़रों को उठाकर हैदर का चेहरा देखा, जहाँ कोई रहम नरमी की गुंजाइश नहीं थी। बाहर आओ। इसका लहजा भी इसके चेहरे के तासुर की तरह करख्त था, एकदम जैसे बेजान सी हो गई। मुझे माफ़ कर दो हैदर, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे एतराफ़ है। इसके इरादों की सफ़ाकी का ख्याल इसका सारा तनतना साथ बहा ले क्या था। वो बाकायदा इसका सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। हैदर ने तनफ़ुर से भरी निगाह लिए इस बेबस लड़की को देखा। अरे अरे, मेरे कदमों में क्यों बैठ रही हो? तुम्हारा म्यार इतना पस्त नहीं होना चाहिए। इसके लहजे में तंज की काट थी। सिला का दिल हर लम्हा धड़कने गुम कर रहा था। प्लीज़ हैदर, माफ़ी मांग रही हो ना। वो बेइख्तियार सिसक उठी थी, बेबसी से, लाचारी से, जब वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर फार्म हाउस के अंदरूनी कमरे में से एक में ले आया था। और सिला की मुज़ाहिमत इसके आगे हकीर तिनके की हैसियत से भी कम साबित हुई थी। लफ्ज़ माफ़ी मेरी लुग़त में नहीं है सिला बेगम। सो क्या करूं? तुम्हारे गरूर का सर नीचा किए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। याद करो, तुम्हें इज़्ज़त रास नहीं आई थी। अब ये ज़िल्लत तुम्हें समझाएगी अच्छाई और बुराई के फ़र्क को। वो इसे बिस्तर पर उछालते हुए गुर्रा उठा था। तुम ऐसा मत करो हैदर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वादा करती हूँ आइंदा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे अब यहाँ से जाने दो। अब के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसे हैदर की आंखों में रहम की कोई रमक नज़र नहीं आ रही थी। सही मायनों में इसकी इज्जत दाव पर लगी हुई थी। तुम्हें यहाँ से जाना ही है। सारी उम्र में तुम्हें अपने पास रख भी नहीं सकता। इतनी पसंद भी नहीं हो तो मुझे, तज़हीक आमेज़ अंदाज में बोला। और जिन नज़रों से इसे देखा था, सिला की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी हैदर, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा इस सब करने का। कोई बस न चलता देखकर गम और गुस्से की ज़्यादती से चीखने लगी। हाँ तो कर लेना ख़ुदकुशी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बल्कि जो कुछ तुम्हारे साथ अभी होगा, इसके बाद तुम्हें ख़ुदकुशी ही करनी चाहिए। इसकी बेहिसी और सफ़ाकी के मुजाहिरे ने सिला को सुन कर दिया था। टुकर टुकर इसे देखने लगी। तुम शादी करना चाहते थे ना मुझसे हैदर, कर लो शादी। इस तरह मुझे मेरी नज़रों में ना गिराओ। तुम्हें खुदा का वास्ता है। अपनी बात कहकर वो इस वहशत से रोई थी कि हैदर इसे देखता रह गया। साफ लगता था इसने इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर अपनी पसंद, अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात सब कुछ दाव पर लगा दिया था। इसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में अंधेरा किए तकिए में मुंह घुसेड़े साकिन सी पड़ी थी। शानजे की आवाज़ सुनकर एक बार फिर खाइफ सी हो गई। हैदर से निकाह के बाद वो शानजे के सामने ख़ुद को बोझल, दिल गिरफ्तार और मुजरिम महसूस करती थी। निकाह के बाद वो एकदम कैसे पेंतरा बदल गया था।
तैश, इश्ताल और गुस्से की जगह सरशारी, तरंग, फातहाना खुमार ने ले ली थी। थैंक गॉड तुमने अल्लाह का वास्ता मुझे शादी करने के लिए दिया, वापस छोड़ाने को नहीं। वो कितना हंसा था ये बात कहकर, और सिला पहले हवन्नक हुई थी, फिर इसे जैसे आग लग गई। इसने इसी गुस्से में आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया था। तुम होते कौन हो इस तरह मेरे जज्बात से खेलने वाले? बफर से उठी थी। जवाबन हैदर फिर से सरमेहर बन गया। अपने आप को काबू में रखना सीखो सिला। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तुम्हें दिन देखना नसीब हुआ है। शुक्र अदा करो कि मैं घटिया कमज़ोर नफ्स इंसान नहीं हूँ। वाकई ऐसा होता जैसा तुम मुझे कहकर तैश दिलाती रही हो ना, इस वक्त तुम्हारी हैसियत मेरी मनकूहा के बजाय दाश्ता की होती। आइंदा मुझसे कोई भी फजूल बात करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सिला को लगा था अल्फाज के संगरेज़ों ने इसका वजूद लहू लुहान कर दिया हो। सारे रास्ते गुमसुम रही थी। हवेली वापसी शाम ढले हुई थी। सोलते हाल को भी हैदर नहीं संभाला। संभालो अपनी सहेली, देख लो सही सालम है मोहतरमा। गांव की सैर का शौक़ इतनी शिद्दत से चुराया जब ही अकेले निकल खड़ी हुई। वो तो शुक्र करो भटक गई तो मेरे हाथ ही लगी, वरना पता नहीं क्या होता। इसे परेशान हाल मुतफक्कर ख़वातीन के स्पुर्द करके वो ख़ुद अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मगर इसका आखिरी फ़िक्रा तमाम तर्ज़ो मानवियत और तलखी समेत सिला के वजूद में नेज़ा बनकर पेवस्त हो गया था। एहसास सिर्फ ज़िया मलाल का ही तो नहीं था, शर्मिंदगी सुबह की भी जानलेवा थी। इसे अब ये पछतावा आन लगा था, इसने ख़ुद से आखिर हैदर को शादी का क्यों कहा। इज़्ज़त से बचाव का भी सिर्फ यही रास्ता तो नहीं था। वो जान देकर भी तो इज़्ज़त महफूज रख सकती थी। इस तरह तो गोया इसने ख़ुद को और जलील कर लिया था। ऐसी जानलेवा सूरत हाल से गुजरने के बाद भी इसकी अक्कड़ का वही आलम था। हैदर को पसंद नहीं करती थी। इसके ख्याल में वो था भी नहीं इस काबिल कि इस जैसी हसीन तरहदार शहरी लड़की को डिज़र्व करता। सिला हरगिज़ भी इस कॉम्प्रोमाइज़ पर आमादा नहीं थी। वो चाहती तो वहाँ से अब भी जा सकती थी, मगर वो शायद अहमक थी और ख़ुद को अब भी बहुत कुछ समझने की हिमाकत में मुब्तला थी। जब भी वहाँ रहकर हैदर का मुकाबला करना और इससे मुस्तकिल जान छुड़ाना चाहती थी, मगर कैसे, यही से समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाऊं? बुखार तो कदरे हल्का है। शानज़े ने इसका माथा छुआ और नरमी से मुखातिब किया था। सिला गहरी सांस भर के उठ बैठी। मैं ठीक हूँ शानज़े, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो बात भले इससे कर रही थी, मगर इससे नज़रें नहीं मिला सकी। वो अब इसमें उस वक्त तक इससे नज़रें मिला भी नहीं सकती थी जब तक हैदर से वो नाम निहात ताल्लुक़ तोड़ नहीं लेती। परेशान क्यों ना हूँ? तुम बिस्तर संभाल के ऐसे पड़ गई हो जैसे यहाँ बीमार होने को ही तो आई थी। यार कल शेरी की बिस्मिल्लाह है। ओह यार मैं ठीक हूँ, और तुम्हारे भतीजे की तकरीब में पूरी सज धज से शरीक होंगी। डोंट वरी। जी मगर ध्यान रहे, सज धज आपने अपनी रुखसती के लिए करनी है, इस पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। इस वक्त हैदर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था और नहायत बेतकल्लुफ़ी से इसके पास कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसका लहजा गो के सरगोशी से मुशाबे था। इसके बावजूद सिला ने सरासीमा होकर कुछ फासले पर मौजूद शानज़े को इस खौफ से देखा, कहीं वो सुन तो नहीं चुकी। मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ कुछ लाती हूँ सिला, तुम कुछ खाओगी तो ही दवा ले सकोगी। शानज़े हमेशा की तरह सादा, पुरखुलूस और मेहरबान थी। सिला ने महज सर हिला दिया। वो इस वक्त अगर हैदर से बात ना करना चाह रही होती तो लाजमी शानज़े को अपने पास रोके रखती। कहाँ गायब थे तुम? मत भूलो कि मैं तुमसे इस तरह अपना मुतालबा पूरा नहीं कराऊंगी, समझे? वो ज़ोर से फुनकारी थी। इसका मतलब है तुम भी मेरी तरह बेचैन हो तो करवा लें फिर रुखसती। तुमने बड़ी ज़्यादती की, सिर्फ निकाह पर टरखा कर। इसकी आंखों में कितनी चमक और शौक़ी एक साथ दर आई थी। सिला को इससे बेतहाशा घिन महसूस हुई। अपनी शक्ल देखी है कभी तुमने? इतनी फजूल बातें सोच रहे हो। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। वहाँ सिचुएशन इतनी नाजुक थी, मुझे मजबूरन ये तौक गले में पहनना पड़ा। इसे मैं उम्र भर का रोग नहीं बनाना चाहती। उसके लहजे का तकब्बुर, गरूर, नखवत एक बार फिर वही था, इससे भी सवातर। हैदर का चेहरा तौहीन हतक से सुर्ख हुआ था। कुछ देर इसने लहू रंग दहकती हुई आंखों से सिला को देखा था। कुछ कहे बगैर उठकर वहाँ से चला गया। सिला होंठ भींचे बैठी थी। इसे एहसास नहीं था अपने लिए मज़ीद मुश्किलात समेट रही है। मैं तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूंगा। रात 10 बजे छत पर आ जाना, वहीं इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। ये शाम का वक्त था जब सिला के सैल ने हैदर का टेक्स्ट वसूल किया। आज बिस्मिल्लाह की तकरीब थी और पूरी हवेली बर की कुमकुमों से रोशन हो चुकी थी।
तकरीब का एहतमाम आला पैमाने पर था। मेहमान इतने थे कि इतनी बड़ी हवेली में भी तिल धरने की जगह नहीं बची थी। सिला ने शानजी की बेहद मिन्नत समाजत के नतीजे में अपना वही सिल्वर लहंगा पहना था जो इसने अपने कज़न की शादी के लिए बनवाया था। साथ में मैचिंग सिल्वर ज्वेलरी वो सही मायनों में चमकीली परी या फिर अप्सरा लग रही थी। खुले बाल कंधों से फिसलकर कमर पर आ रहे थे। दमकती पेशानी पर बिंदिया लश्कारे मार रही थी। इस तैयारी, इस आराइश में जी जान इसलिए भी सर्व की थी कि वो हैदर को जिताना चाहती थी। वो इसे बताना चाहती थी कि इस जैसी चांदनी जैसा सरापा और हुस्न रखने वाली लड़की हैदर जैसे आम मर्द का नसीब नहीं हो सकती थी। बहरहाल वो इतना खुश नसीब नहीं था और ये बात वो इसे किचन में जिता भी चुकी थी। ये महज इत्तेफाक था कि इन दोनों का सामना इस वक्त वहाँ हो गया था जब हैदर चाय की तलब में वहाँ आया था और सिला शानजे की हदायत पर फ्रिज से गजरे उठाने को फ्रिज का दरवाज़ा खोले गजरों का पैकेट निकाल दी थी। आहट पर बेसाख्ता वो मुड़ी तो हैदर था, मबहूत गुंग सा इसे देखता हुआ। सिला के चेहरे पर जोम और फातहाना मुस्कान बिखर गई। तुम हसीन हो, मैं जानता था। इतनी हसीन हो कि मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। अपनी बेखुदी पर कदरे काबू पाकर कुछ खिसिया कर बोला था। सिला आहिस्तगी से खनकारी। अच्छा हुआ तुम्हें अंदाज़ा हो गया, अब फैसला करने में और भी आसानी होगी। इसका लहजा तंजिया था। कौन सा फैसला? हैरान नज़र आने लगा जबकि सिला की नज़रों की तलखी और तपिश एक साथ बढ़ी। तलाक मांगी थी मैंने तुमसे, याद है? मैं ऐसी फजूल बातों पर कान नहीं धरा करता। हैदर का खुशगवार मूड गारत हुआ था जब इस जहर खंद लहजे में बोला। मेरी बात सुनो। पलट कर वहाँ से जा रहा था कि सिला ने काटदार अंदाज में पुकार कर टोका। हाँ बोलो। हैदर की नज़रों में इस नागवारी का तासुर हनूज़ मौजूद था। तुमने मुझे देखा ना, जान भी लिया कि मैं किस दर्जा हसीन हूँ। अब तुम्हें चाहिए कि ख़ुद को देखो और जान भी लो कि तुम खुद क्या हो। क्या एनालाइज करते हो कि मेरी जैसी लड़की तुम्हारी बना दी जाए? इसके लहजे में वाज़े हकारत थी। हैदर का चेहरा यकायक दहक उठा। कुछ देर इसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर इसे शानों से थाम लिया। तुम एक बार फिर अपनी हद भूल रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी बन चुकी हो। तुम्हारी ये अकड़ मेरी नरमी तक महदूद है। मुझे सख्ती पर मत आजमाओ सिला साहिबा, वरना कुछ और भी पछताओगी। किचन के बाहर आहट हुई थी। हैदर ज़ोर से चौंका, फिर इसे छोड़कर पलटा और लंबे डिग फलता बाहर निकल गया। सिला संभल नहीं सकी। किचन के दरवाजे पर भाभी खड़ी थी। इसी की जानिब हैरानी और किसी हद तक मशकूक नज़रों से देख रही थी। इसकी तरहदारी तो हैदर ही उड़ा चुका था। रही सही कसर भाभी की नज़रों ने निकाल दी। मैं ये गजरे शानजे के लिए। सिर्फ गजरे ही नहीं, यहाँ मौजूद हर शय, हर रिश्ता शानजे का ही है सिला बेगम। सो बी केयरफुल। भाभी की सिर्फ नज़रें ही नहीं, लहजा और अल्फाज भी से झुलसा गए। वहाँ से निकली तो इसके चेहरे पर खिफ़्फ़त ही खिफ़्फ़त थी। पता नहीं कि जोम में है ये मोहतरमा। इन्हें क्या पता मैं तो जान छुड़ा रही हूँ इस खबीस से। कितनी देर तक उनके जुमले से झुलसती रही। बिस्मिल्लाह के बाद फ़ौरन खाना लग गया था। खाने के दौरान टाइम गुजरने का पता ही नहीं चल सका। सिला ने तो वैसे भी नहीं खाया गया था। इसके ज़ोम और ख़ुद एतमादी को हैदर ने ऐसी ठोकर लगाई थी कि वो अभी तक लर्जीता थी। सिला हकीकतन इससे खाइफ हो चुकी थी। आज रात 10 बजे और 10 बजने में अब सिर्फ 15 मिनट हैं। अगर तुम ना आई तो अंजाम की तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हैदर जाने किस कोने से निकल कर आया था और इसके पास से गुजरते गोया यही यकीन दहानी कराई। सिला का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसने खाइफ नज़रों से पहले इसे फिर अपने अतराफ़ में देखा था। हर सू गहमा गहमी थी। अगर कोई इनके सिमत मुतवज्जा भी था तो सरसरी अंदाज में। वो कदरे रिलैक्स हो गई और हाथ में पकड़ी प्लेट रखती सब लोग अपने अपने तौर पर मसरूफ़ थे। वो गहरी सांस भरती वहाँ से हटकर जीने की तरफ आई। जीने की ग्रिल बरकी कुमकुम और गेंदे की लड़ियों से आरास्ता थी। ऊपर चढ़ते हुए इसका पैरों को छूता लहंगा बार बार जूतों तले आकर इसे लड़खड़ा के रख जाता। इसने एहतियातन लहंगे को आगे से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। इस जानिब इस पल हू का आलम था। इसे इस सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनें बखूबी सुनाई दे रही थी। इसका दिल इसके लिबास की तरह इसके कदमों से लिपट लिपट कर यूँ तन्हा हैदर के पास जाने से रोकता रहा, मगर इसके कदम नहीं रुके थे। हर कीमत पर यह आग का दरिया पार कर लेना चाहते थे। हर सूरत इसके तसल्लुत से छुटकारा चाहती थी। छत सुनसान थी और रात बेहद तारीक।
सुर्ख ईंटों के फर्श पर मुंडेरों पर जलते चिरागों की रोशनी का गुबार फैला हुआ था जो आराइश के घर से सजाए गए थे। हैदर का दूर तक पता नहीं था, अलबत्ता शुमाली दीवार के साथ चारपाई बिछी थी। वह आहिस्तगी से चलते हुए वहीं आकर टिक गई। चंद लम्हे इसका इंतज़ार करते रहने के बाद इसने अपना सेल फ़ोन निकाल कर हैदर को टेक्स्ट भेजा। कहाँ हो तुम? मैं छत पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सेल फ़ोन रखकर वो थके हुए अंदाज में वहीं नीम दराज हो गई और आंखें बंद कर लीं। इसकी आंखें इस पल शदीद जलन समेट लाई थीं। दीवार से कोई साया सा उतरा। वो इतनी गाफिल थी इसके से कोई आहट, कोई खबर तक ना हो सकी कि हैदर इसके इस कदर करीब आ गया। इस खामोश हसीन रात में वो अपने साहिराना हुस्न के साथ इसके बेहद नज़दीक थी, इतनी कि वो चाहता तो हाथ बढ़ाकर इसे बआसानी छू लेता। वो जिसे पाने, जिसे छूने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि वह जायज़ नाजायज़ के फ़र्क को भुलाकर बस इसे हासिल करने की जुस्तजू में लग गया था। वो चौंक गया। सिला की बंद आंखें आंसू बहा रही थीं। एकदम से इस तराब का शिकार होकर हाथ बढ़ाकर इस नमी को समेटने लगा। तुम रो रही हो? सिला इसका लम्स पाती हड़बड़ाकर आंखें खोल चुकी थी। इसे रूबरू बल्कि इतने करीब पाकर एक झटके से उठना चाहती थी कि हैदर ने अपना बाजू इसके ऊपर रखकर इस कोशिश को नाकाम बना दिया। क्यों रो रही थी तुम? दिल की कैफियत के बरक्स इसका लहजा बज़ाहिर सख्त था। तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम वो बात करो जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। इसका हाथ बेहद गुस्से से झटकती सिला उठकर फासले पर जा खड़ी हुई। मैंने तुम्हें जी भर कर देखने और प्यार करने के लिए बुलाया था। गलती हुई, ये जगह मुनासिब नहीं। चलो बेडरूम में चलते हैं। वो शुरू से अब तक जानबूझकर इसे तेज दिलाता, फिर इसके हरास ज़दा चेहरे को देखकर हैज़ उठाया करता। इस वक्त भी इसका मकसद यही था। सिला पर इस पर उल्टा असर हुआ। इस कदर जहनी अजियत, तनाव का शिकार थी, सोचे समझे बगैर इस पर हमला आवर हो गई। बकवास बंद करो, समझे? अपनी ज़ुबान से मत फिरो। मर्दानगी का कुछ तो लिहाज करो, अगर तुम्हें शर्म है तो। हैदर ने इसके हाथों को अपने चेहरे तक पहुंचने से पहले काबू कर लिया था, फिर एक ज़ोरदार झटका इस अंदाज में दिया कि इसके दोनों हाथ कमर पर ले जाकर एक हाथ में पकड़े, दूसरे से इसका चेहरा जकड़ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखना। तुम पे असर क्यों नहीं होता? तलाक का लफ्ज़ अगर दोबारा तुम्हारी ज़ुबान पर आया, मैं इस ज़ुबान को ही काट कर फेंक दूँगा। निकाह मैंने इसलिए नहीं किया था कि तुम्हारे कहने पर ख़त्म कर दूँ। सिला की सांसें रुक गई थी और आंखें खौफ की ज़्यादती से फैल सी गईं। इसकी पोजीशन इस वक्त नाजुक थी। वाकई इस पल मुकम्मल तौर पर इसके रहमो करम पर थी। यह हैदर ने अपने हर अमल से इसे जिता दिया था। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से अपने कमरे में ले जा सकता हूँ, किसी को ख़बर भी नहीं होगी। और तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सको। वो इसे झटकते हुए गोया एक बार फिर इस पर इसकी औकात वाज़ेह कर रहा था। सिला लड़खड़ा कर दूर हुई और नीचे बैठती चली गई। इसकी आंखें बहुत खामोशी से बरस रही थी। बेबसी, बेकसी, लाचारी का एहसास इस तरह बंद कर रह गया था। जाओ वापस नीचे, किसी ने यहाँ देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगी। हैदर ने इसके सहरंगेज सरापा से निगाह चुराते बज़ाहिर तलखी से कहा था। जितना भी इस पर गुस्सा था, ये भी हकीकत थी कि वो इस पर जबर नहीं कर सकता था। ये लड़की अपनी तमाम तर खुदसरी, नखवत, अकड़ के बावजूद इसे अजीज़ थी। इसके जाने के बाद भी कितनी देर टहल टहल कर ख़ुद को कंपोज करता रहा। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, तुम्हें लौटकर यहीं आना है। अगले दिन जब वो जाने को तैयार थी तो हैदर ने आकर इसे जिताना ज़रूरी ख्याल किया। सिला इतनी मुतनफ़्फ़र थी कि निगाह भर के इसे देखा तक नहीं। हैदर इसकी खफकी महसूस करके नरमी से मुस्कुराया। नाराज़ हो? ये सवाल सिला को भड़का के रख गया। मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। तुम्हारी औकात के लिए एक फ़िक्रा ही काफ़ी होना चाहिए। वो आदत से मजबूर थी। पसपा होना इसे पसंद नहीं था, हालांकि इसी बाइस वो कितना नुकसान उठा चुकी थी। तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हें इस तमाम तर नफ़रत, बेजारी के बावजूद मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं ऐसी ज़िंदगी पर लानत भेजना ज़्यादा पसंद करूँगी अगर ऐसा हुआ तो। नफ़रत की आखिरी सीढ़ी पर जा खड़ी हुई। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मिसेस। कसम खा कर कहो कि तुम खुद मुझसे ही गुजारिश करोगी। वो इसकी आंखों में झांकने लगा। जनों खेजी से लबरेज सुर्ख आंखें। सिला को जाने क्यों खौफ महसूस हुआ। इसने निगाह फेर ली। इस वक्त वो वाकई इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। रात तक रुक जाओ, तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूंगा। इसे होंठ भींचे देखकर हैदर ने मूड बदल कर मुस्कुराहट दबाई और सिला के चेहरे पर खून छलक आया। इसकी खबासत का वाकई मुकाबला नहीं कर सकती थी। सुबह एक बार फिर उनके बीच तकरार हुई थी। वो एक बार फिर वही मुतालबा कर रही थी और वो इनकार किए जा रहा था। ऐसा मत करो मेरे साथ हैदर।
वो ज़िद छुई थी जब ये मिन्नत पे उतर आई। यानी तलाक ना दूँ तुम्हें? मैं ख़ुद भी तो यही चाहता हूँ जाने मन। कितनी हसीन हो तुम। मैं चाहता हूँ हमेशा तुम मेरी बीवी रहो। वो इस दिल जलाती मुस्कान समेत बोला था हौसला सिला का, जो सिला का खून जलाकर रख देती थी। सिला का तैश फिर से उमड़ आया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मुकलने नहीं दूंगी। वो हलक के बल चीखने लगी। पिछले दिनों से वो इतनी टेंशन का शिकार थी कि ख़ुद को हिस्टेरिक होने से बचा नहीं सकी। हैदर ने टोका था, क्या हो गया तुम्हें सिला? अपनी पोजीशन का ख्याल करो। कोई यहाँ आ गया तो मुझे तलाक दो, अभी, इसी वक्त। हर सूरत इससे छुटकारे की मुतमन्नी थी। ये ताल्लुक़ कोड़िया सांप था जो हर लम्हा हर पल इसे डसता था। ये तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? इसकी बात के जवाब में वो गुर्राया। सिला हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब? सहमी नज़रों से इसे तकने लगी। किसी मर्द को इतना शरीफ देखा है तुमने? अपने कब्ज़े में आई हसीन तरीन लड़की पर हाथ साफ़ किए बिना छोड़ दे। कितना तरसाया है तुमने मुझे, तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसकी ज़ुबान भी इसकी नज़रों और सोचों की तरह सथी और घटिया थी। सिला शर्म और खिफ़्फ़त से कट के रह गई। मुझे तुम्हारी हवीस का अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, तुम ये खराज वसूल कर लो और हमेशा के लिए मुझे छोड़ दो। इस पल वो ख़ुद भी बेबाक हो गई थी, वरना एक बाहया लड़की इस किस्म की बात मुँह से निकालने से कबल मरना पसंद करती है। इसके नज़दीक ये एक खेल था जिसमें वक्ती तौर पर हैदर को फ़तह हासिल हो गई थी। वो हर सूरत ये जीत, ये फ़तह दोबारा हासिल कर लेना चाहती थी, मगर ख़ुद को पामाल करने के बाद इंतहा की जज्बातियत ने इससे अकल छीन ली थी। हैदर ने चौंक कर इसे देखा, किसी कदर खबासत से हंस पड़ा। इसका मतलब, बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ है, बिला झिझक बोली। इसे इस पल ये भी परवाह नहीं थी कि इसकी निस्वानियत किस दर्जा पस्ती में गिर रही थी। मगर मुझे नहीं है, कुछ दिन इंतज़ार कर लो। कंधे उचकाकर बोला और वहाँ से जाने को पलटा था कि ज़िल्लत, सुबकी, तौहीन के एहसास से भड़ भड़ जलती सिला ने इसका कॉलर पकड़कर खींच लिया। घटिया इंसान, तुम अपनी बात से फिर रहे हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अच्छा, तमस्खुर से हंसा, फिर कंधे उचका दिए। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो कर सकती हो तुम करो। इसके होंठों के साथ आंखें तक मुस्कुरा रही थी। सिला शशतर होकर रह गई। तुम कह लो, मैं ये हविस एक बार नहीं मिटा सकता। बहुत खूबसूरत हो तुम, मैं हमेशा तुम्हें साथ रखना चाहता हूँ। इसका गाल छूकर वो मुस्कुरा कर कहता वहाँ से चला गया। और सिला, वो तो जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। वो तो ये भी समझ नहीं पा रही थी कि इस सारे सिलसिले में इसका अपना कसूर किस हद तक था। और अब हैदर का इसी बात का हवाला इसे फिर से झुलसा के रख गया था। मैं तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। वो आजमाइश में इस सूरत सहती अगर तुम चुपचाप मुझे तलाक देते। अब मैं जान गई हूँ, तुम में इंसानियत और शराफत सिरे से मौजूद ही नहीं। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ गई। वैसे इतने बड़े बोल नहीं बोला करते, वक्त का कुछ पता नहीं होता। ऐन मुमकिन है कल फिर किसी मजबूरी में तुम्हें ये बात मुझसे कहनी पड़ जाए। वो मुस्कुरा रहा था। सिला के चेहरे पर जैसे किसी ने आग फेंकी थी। ये तय था, वो इस आदमी के घटियापन के आगे नहीं ठहर सकती थी। जब ये पैर पटकती खुद वहाँ से चली गई थी। फिर कितने बहुत सारे दिन बीत गए। इसे सही मायनों में अपने नुकसान का एहसास हुआ तो गुमसुम होकर रह गई। इसमें शक नहीं था कि वो हैदर के फेंके जाल में पूरी तरह जकड़ी जा चुकी थी, जबकि इसकी इस कमज़ोरी का एहसास भी किसी को नहीं था। शहरियार से इसकी निस्बत ठहर चुकी थी और वो किसी वक्त भी शादी का मुतालबा कर सकता था। फिर क्या होता? दूसरी जानिब हैदर था जो हरगिज़ इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो इतनी हवास बाख्ता थी, कभी कभार घबरा कर रोने बैठ जाती। ये सूरत-ए-हाल ऐसी थी, वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। जो भी था, इसमें हरगिज़ शक नहीं था कि कसूर सिर्फ इसका था। इसे साफ लगता ही मम्मी की हुक्म अदूली की सज़ा है। शुरू में उनकी बात मानी होती तो शायद ये सूरत-ए-हाल इस हद तक गंभीर ना होती। शहरियार तो शायद ये सुनकर ही बफल जाता और मरने मारने पर तुल जाता। मम्मी ने भी इसे लान तान और मलामत ही करनी थी। ले देकर डेड रह जाते। वो हार्ट पेशेंट थे, शायद इसकी हिमाकत की इंतहा सह ना पाते। वो जितना सोचती इसी कदर दिमाग पिलपिला होने लगता। सिला, तुम खफा हो ना मुझसे? उसके गुरेज से शान से अलग हलकान थी, यहाँ तक कि इससे मिलने घर आ पहुँची थी। सिला को इसे देखकर अलग गुस्सा आने लगा। तुम यहाँ क्यों चली आती हो? इसे देखकर वो किलस कर बोली। इसे शानजे पर भी ताव आ रहा था। इसी की वजह से मनहूस आदमी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया था। क्या मेरे मिलने पर भी पाबंदी है? तुम तो मुझे इस काबिल नहीं समझती हो।
शानज़े के दिल पर चोट पड़ी थी जब सिसक उठी। सिला ने एक नज़र इसे देखा, फिर इसके लिए इंटरकॉम पर चाय ऑर्डर करने लगी। तुम्हें हुआ क्या है? इतनी वीक क्यों हो रही हो? चेहरा बुझा बुझा सा हो रहा है। शानज़े को इसे देखकर हौल उठने लगे थे। कुछ नहीं। इसने बेख्तियार नज़रें चुरा लीं। मुझसे भी छुपाओ कि अब? शानज़े को जैसे बेतहाशा दुख ने आन लिया। मैं क्या छुपाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है कुछ। वो झुंझलाने लगी। शानज़े ने कुछ देर इसे देखा, फिर सर झुका लिया। अब क्या हुआ? मुंह क्यों लटका लिया तुमने? सिला झुल्लाते हुए बोली और शानज़े ने ठंडी सांस ली। मेरी शादी हो रही है सिला। हैदर को पता नहीं क्या सोची, फाइनल एग्ज़ाम्स भी नहीं देने दे रहे। शानज़े की इस बात ने इसे एकदम एक गुमसुम करके रख दिया। यार तो मेरी सिफारिश उनसे कर दो ना। और तो किसी की नहीं सुनते। मेरी इतनी सालों की मेहनत है। इसकी सोचों से बेखबर शानज़े अपनी कहे जा रही थी। सिला ने ठंडी सांस भरी। इसने शानज़े से वादा कर लिया था हैदर से बात करने का। इसके ख्याल में अब वो इसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में फ़ोर्स कर सकती थी। इसके जाने के बाद सिला ने हैदर से रब्ता किया था। इसके तारुफ के जवाब में टोकते हुए बोला, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो सिला। अच्छा तो अल्हाम भी होते हैं तुम्हें? तंज करने से बात नहीं रह सकी। हाँ, जैसे ये अल्हाम हुआ था कि मुझ पर कि तुम इस दुनिया में सिर्फ एक मर्द के साथ खुश रह सकती हो, और वो मर्द मैं हूँ। किस सुकून से कहकर हंस रहा था। सिला को इसी हिसाब से आग लग गई। शानज़े के बारे में भी तुम्हें ऐसे ही अल्हाम हुआ होगा, है ना? शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें? शर्म में कैसी शर्म? मैंने तुम दोनों से शादी करनी है। 2 की मज़ीद गुंजाइश है। मजाल है जो वो लाजवाब हो जाए। मेरी बला से 4 के बजाय 8 कर लेना। मुझे छोड़ दो। तुम्हें नहीं छोड़ सकता सिला। ये बात बार बार ना किया करो, अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करती हो। अब इसका लहजा सर्द और शफ़ाक था, मगर वो ख़ाइफ़ नहीं हुई। मैं कोर्ट से रुजू करके भी तुमसे अलहदगी अख्तियार कर लूँगी। ये मेरी ज़िद है कि तुम्हें अब जीतने नहीं दूँगी। वो चटकने लगी, मगर हैदर ने कहकहा लगाकर गोया इसका मज़ाक उड़ाया था। निकाहनामा है तुम्हारे पास? जब कोई सबूत नहीं तो केस कैसे करोगी? सिला सर्द पड़ने लगी थी। कुछ गलत तो नहीं कह रहा था। इसे एक बार फिर अपनी शदीद बेबसी का एहसास हुआ। झुंझलाकर फ़ोन बंद कर दिया था। हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। शानज़े की शादी तय हो गई थी। वो रोती धोती वापस गांव रवाना हो गई, सिला से शादी में शरीक होने के वादे लेकर। मगर इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक अनजान नंबर से इसके सेल पर कॉल आई। तुम्हें अपने शौहर की शादी की यकीनन खुशी नहीं होगी, मगर सहेली की शादी में बहरहाल तुम्हें शरीक होना चाहिए। वो हैदर था। अपने मखसूस दिल जलाने वाले अंदाज में बात करता वो इतना भड़की कि फ़ोन बंद कर दिया। दोबारा इस नंबर से कॉल आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सिला ढीठ बन गई। इसका हल नज़रअंदाज करना ही था। तब मैसेज टोन बज उठी। इसी नंबर से टेक्स्ट था। सिला ने बेदिली से खोला। तुम्हें मेहंदी की रात हवेली में पहुंचना चाहिए सिला। मेहंदी की रात इसलिए कि ये तुम्हारी गोल्डन नाइट होगी। मैं बड़ा असूल पसंद हूँ। पहली बीवी तुम हो। मुझ पर पहला हक भी तुम्हारा ही है। याद रखना, तुमने अक्कड़ दिखाने की कोशिश की। तुम्हारी सहेली इस वक्त तक मुझे हासिल नहीं कर सकेगी जब तक मैं तुम्हें ना पालूं। सिला का चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो गया। उसकी उंगली की एक जुम्बिश ने ये मैसेज ज़ाया कर दिया। ये तय था कि अब इसे हैदर की धमकियों के खातिर में नहीं लाना था। वो अगर शानज़े की वजह से इसे ब्लैकमेल करना चाहता था तो ये हैदर की भूल थी। बहरहाल शानज़े इसकी दुखती रख कभी नहीं रही थी। शानज़े की शादी का दिन आया और गुजर गया। शऊरी नहीं, गैर शऊरी तौर पर ज़रूर मुस्तरब थी। हैदर से ख़ाइफ भी। खैरियत गुजरी थी कि इसके बाद बहुत दिन बीत गए। शानज़े का कभी कभार फ़ोन आ जाता। वो इससे इस लाताल्लुकी का शिकवा करती जो सिला ने इससे अपना ली थी, मगर सिला कभी इसे खातिर में नहीं लाई। इन्हीं दिनों जब गर्मियाँ रुखसत हो रही थी, शहरियार अचानक वापस आ गया। मम्मी के ज़रिए इसे शहरियार के इरादों का भी पता चल गया कि वो शादी करना चाह रहा है। सिला की फिर से जान पर बनाई। हैदर से बात करने का मालूम नहीं किस हद तक फ़ायदा होता कि आजकल इसकी जानिब से मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। एक बार फिर इससे अपना मुतालबा दोहराने का सोच ही रही थी कि इससे पहले शहरियार ने खुद इससे रब्ता करके मिलने का कह दिया। उसे शिकवा था कि सिला इसे नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि ये नज़रअंदाजी नहीं थी। वो अपने मसाइल में इस तरह उलझ गई थी, वरना मोहब्बत सिर्फ शहरियार ने नहीं की थी, वो भी इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। सिला इसी शाम इससे मिली थी और बहुत स्वभाव से अपने कुछ खुद साख्ता मजबूरियां बयान करके फ़िलहाल शादी रोकने का मुतालबा किया। शहरियार परेशान तो हुआ, अलबत्ता इसे इनकार नहीं कर सका।
सिला की टेंशन आधी से ज़्यादा रिलीज़ हो गई, मगर इस वक्त वह हवास कायम नहीं रख सकी जब अगले दिन कॉलेज से वापसी पर इसे हैदर ने गैर मुतवक्के तौर पर इस वक्त अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती खींच कर बिठा लिया था। जब वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी। व्हाट नॉनसेंस! हैदर को रूबरू ख़तरनाक तेवरों के साथ पाकर अपनी जान हवा होती महसूस कर चुकी थी। इस पर अपना खौफ जाहिर करके इसे शेर होने का मौका भी नहीं देना चाहती थी। जब ये नागवारी से बोली थी, कल किसके साथ थी तुम? हैदर ने खूनखार नज़रों से इसे घूरा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? भड़क उठी। मगर हैदर इसके भड़कने को बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले लम्हे इसके उल्टे हाथ का थप्पड़ सिला का चेहरा फेर के रख किया था। तुम्हारी बेशर्मी बेबाकी की कोई हद है? अपने शौहर पर किस धड़ल्ले के साथ अपना गुनाह जाहिर कर रही हो? इस पल वो सरापा एक कहर था। सिला तो भौंचक्की रह गई थी। इसकी आंखें खौफ हैरत के बाइस फट सी गई। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। समझ लो रुखसती हो गई तुम्हारी। इससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकता मैं तुम्हें कि तुम मेरी इज्जत यूँ रोलती फिरो। भड़क कर फुनकारते हुए कह रहा था सिला जैसे इसी पल होश में आई। वो शहरयार है मेरा फ्यांसी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसके सिवाय मेरे किसी को भी खबर नहीं। मैं इसे शादी ना करने की वजह से ही मिली थी। और अब सबको पता चल जाएगा। तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? हनूस शोला जवाला बना हुआ था। सिला का दिल पाताल में उतरने लगा। दिस इज़ नॉट फेयर। ये सब कुछ इस तरह नहीं हो सकता। मैं अपनी बकवास बंद रखो सिला। मैंने कहा ना मैं तुम्हें मज़ीद छूट नहीं दे सकता। तुम मेरी बीवी हो तो ये बात अब सबको मालूम होनी चाहिए। इतनी ज़ोर से गुर्राया कि सिला की समातें बेकार होने लगी। वो हारना नहीं चाहती थी। तुम्हारी वजह से पहली बहुत जलील हो चुकी अपनी नज़रों में हैदर, अब और नहीं। अगर तुम मुझे इस तरह अपने साथ लेकर जाओगे तो मैं कसम खा के कहती हूँ मैं जहर फाँक लूँगी। ये आखिरी फ़तह तुम्हारा नसीब नहीं बनने दूंगी मैं। ज़ब्त खोकर चीख उठी थी। हैदर के संगी चेहरे पर लम्हे भर को तगय्युर पैदा हुआ। शायद नहीं, यकीनन सिला के लहजे अंदाज में इतनी पुख्तगी और शिद्दत थी इस पर असरअंदाज हुए बगैर रह नहीं सकी। मैं जानता हूँ जितनी नफ़रत तुम मुझसे करती हो सारी उम्र भी खुद से ये सब नहीं चाहोगी, मगर सिला मैं हर कीमत पर तुम्हें हासिल करूँगा, ये याद रखना। इसने गाड़ी का रुख फेर दिया था। इसके बाद वो इसे इसके घर के सामने ड्रॉप करके मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर चला गया। सिला के लिए फ़िलहाल यही काफ़ी था कि वो तैश से भरे मर्द की चुंगल से सही सालम बच निकली थी। ज़िंदगी पर जैसे जमूत से छा गया था, वो हर चीज़ से बेजार रहने लगी थी। मम्मी इसके बदले मिजाज पर हैरान हुआ करती। इसे कतई समझ नहीं आई थी वो ऐसा क्या करे कि इस मुसीबत से जान छुड़ा ले। हैदर से इस दौरान जितनी बार भी इसने राब्ता किया इसका एक ही जवाब था, मुझे तुम्हें तलाक देने में हर्ज नहीं, पहले शानज़े को दूंगा। उधर शानज़े थी जो बेचारी हर किस्म के हालात से बेखबर हैदर की लाताल्लुकी ने जिसे तोड़ के रख दिया था। क्योंकि वो ख़ुद को सबसे ज़्यादा सिला के नज़दीक पाती थी, अपना दुख इसके आगे खोला था। शादी के महज चंद माह बाद ही हर कोई मुझसे बच्चे के मुतालिक सवाल करने लगा है। सिला, मैं क्या जवाब दूँ? हैदर का तो मुझसे ऐसा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, अगर वो मुझे इतना नापसंद करते थे शादी की ही क्यों, वो भी इतनी जल्दी। इसके आंसू नहीं रुकते थे और सिला को लगता था किसी ने इसे कौन छुरी से ज़िबा करना शुरू कर दिया हो। हैदर इस हद तक गिर जाएगा, इतना कीना परवर होगा, सिला को गुमान तक नहीं था। अब वो समझी थी इसने सारा खेल किस खूबी से खेला था। मकसद यकीनन सिला को काबू करना और बेबस करना था। वो जितनी भी बेहिस सही, इससे शानज़े का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। जब भी वो इससे बात करने पर मजबूर हुई थी। शानज़े का कोई कसूर नहीं है, इसे क्यों सज़ा दे रहे हो? इसने छूटते ही मकसद की बात की थी। तमाम तर गुस्से के बावजूद इसने लहजा कंट्रोल में रखा था। वो हट धर्म इंसान था, अगर मज़ीद अकड़ जाता तो वो क्या कर सकती थी। ये सज़ा इसे मैं नहीं तुम दे रही हो। जवाबन इसका लहजा रूखा और सख्त था। सिला हक तक रह गई। मैं दे रही हूँ? मैंने कहा भी था सिला तो मेरी पहली बीवी हो, मैं ये मुकाम ये दर्जा तुम्हें देना चाहता हूँ। जब तक तुम अपनी हैसियत वाज़े नहीं करती, मेरे हकूक़ अदा नहीं करती, मैं भी पाबंद नहीं हूँ, समझी? नाहिद गुस्से में लग रहा था। सिला ने होंठ भींच लिए। तुम जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम हमें मज़ीद उल्लू नहीं बना सकते। शराफत इसी में है, अपना रवैया बदल लो। सिला ने बग़ैर किसी लिहाज के तल्ख़ी और तनफ़ुर से कहा। वो जवाबन हंसने लगा। एक बात हमेशा के लिए कान खोल कर सुन लो सिला, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी तलाक तो नहीं दूंगा।
शानज़े भी यूं ही रहेगी, बे औलाद तो वो कहलाई जा रही है, पोजीशन इसकी मशकूक है, बांझ भी वही कहलाएगी इसी सूरत में जब मैं एक और शादी करूँगा और मेरी औलाद भी होगी। समझ रही हो? अब फैसला कर लेना, ज़्यादती कौन कर रहा है शानज़े के साथ, तुम या फिर मैं? इस बार सिलसिला पहली मरतबा हैदर ने खुद मुनक़ता कर दिया। सिला पत्थर सी हो गई थी, इसे लगा कि इसके वजूद से भारी पत्थर बंधा है। इसका वजूद हर लम्हा गहरे तारीक समंदर में डूबता जा रहा था। फिर वो पूरी तरह से हार गई। हुआ पहले भी वही था जो हैदर ने चाहा था, हुआ अब भी वही था जो हैदर चाहता था। होता है ऐसा कभी कभी, कोई जीतता है तो जीतता चला जाता है और किसी के मुक़द्दर में मुस्तकिल हार लिखती जाती है। सिला और हैदर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। सिला ने खुद मम्मी, डैड और शहरियार के सामने अपना मुतालबा रखा और अपनी सहेली के शौहर की बीवी बनकर गांव इसकी हवेली में आ गई। उस रोज़ इसकी सज धज देखने वाली थी। इस सज धज के साथ वो पिया देश नहीं मक्तल में आई थी और अपनी सहेली की खुशी की खातिर कुर्बान हो गई। वो सहेली जिसने हमेशा इससे मोहब्बत की थी, जिसने हमेशा इसे अव्वलियत दी थी, जिसने हमेशा इसे दिया था मान, वो सब जो इसने इससे चाहा, मान, चाह, खलूस, इसार और वफ़ा, फिर वो कैसे पीछे रह जाती, वो भी इसी सूरत जब हाथ फैलाकर शानज़े ने खुद मांग लिया था इससे। सिला उस रोज़ बैंक के किसी काम से जा रही थी जब बिल्कुल अचानक शानज़े चली आई थी। सिला कितनी हैरान हुई थी इसे देखकर। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें इजाज़त दे दी हवेली से निकलने की? सिला ख़ुद को संभाल कर दानिस्ता मुस्कुराई। हाँ, दे दी इजाज़त। तुम्हारे मामले में हैदर ज़रूरत से ज़्यादा फ़याज़ हैं। शानज़े के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो चौंक उठी थी। क्या मतलब? इन बातों को छोड़ो, ये बताओ सिला, अगर मैं डूब रही हूँ तो तुम मुझे बचाने की सही करोगी तो किस हद तक? अजीब सवाल था। सिला सर्द पड़ने लगी थी। वो इस बात से खाइफ थी। तुम्हें याद है सिला, तुम्हें एक बार मेरा सोने का ब्रेसलेट पसंद आ गया था, वो मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हें मेरा ड्रेस पसंद आया, मैंने खुशी से तुम्हें थमा दिया। ये बहुत मामूली चीज़ें थी सिला, जिन्हें तुम्हें देते वक्त मुझे कोई ख्याल, एहसास तक नहीं था। कभी मुझे इनके बदल में तुमसे तुम्हारी सबसे अनमोल चीज़ यानी तुम्हें मांगना पड़ जाएगा। मुझे माफ़ कर देना सिला, मैं बहुत कमज़ोर साबित हुई हूँ। अपनी बात अधूरी छोड़कर हाथों में चेहरा ढांपे वो बिलक बिलक कर रोने लगी, जबकि सिला सख्ते में आ गई। मेरी इज़्ज़त, मेरी गृहस्थी, मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ तुम्हारी एक हाँ की मुंतज़िर हैं। तुम हैदर को इनकार ना करो, वो मेरे नहीं तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें उनसे मांगने आई हूँ सिला। चाहो तो मुझे खाली लौटा दो, चाहो तो मेरी झोली भर दो। अगर निकाह किसी मजबूरी में किया था, अब रुखसती भी करवा लो, प्लीज़ प्लीज़, वो कह रही थी। सिला साकित बैठी थी। इसे लगा फ़ज़ा से यकलख्त ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो। हर सिमत हब्स था और तारीकी। इस वक्त वो बादशाह थी और शानज़े सवाली। वो इस सवाली को खाली नहीं लौटा सकी। इसने इसका दामन भरा, ख़ुद उम्र भर को खाली हो गई। कुछ ताल्लुक़ और रिश्ते अपना खराज वसूल करते हैं। शानज़े से इसका ताल्लुक़ भी ऐसा ही साबित हुआ था। फिर पता नहीं कितना अरसा बीत गया, लेकिन बहुत बीत गया था। इसके लिए तो एक सदी के बराबर था। इसकी हट धर्मी और ज़िद का नतीजा था कि मम्मी और डैड इससे हनूस खफा थे और ला ताल्लुक़ भी। शानज़े प्रेग्नेंट थी। इसकी तरह शानज़े भी पूरी तरह खुश नहीं थी। इसने सिला से मोहब्बत की थी और इस मोहब्बत का खराज सिला से वसूल करके भी वो खुश नहीं थी। वो अक्सर इससे माफ़ी मांगती और इसके सामने शर्मिंदा शर्मिंदा फिरा करती। हालांकि सिला को इससे शिकायत नहीं थी। शिकायत तो इसे हैदर से थी, जिसने इसे इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने पर मजबूर कर दिया था। प्रेगनेंसी के बायस शानज़े की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। इस वक्त सिला इसकी तबीयत का ही पूछने आई थी। इसके कदम चौखट पर ही साकिन हो गए थे। हैदर उसके साथ था। वो इससे सिला के मुताल्लिक़ ही बात कर रहा था। वो चाहने के बावजूद नहीं पलट सकी। तुम सही कहती हो शानज़े, मोहब्बत ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल नहीं होती। अब जाकर ही तो मैंने इस बात को समझा है। सिला बुझ कर रह गई है। वो मेरे लिए मफ्तू ज़मीन का एक टुकड़ा है, जिससे इससे कोई गर्ज नहीं होती कि इस पर बीज बोया जा रहा है या फिर बेआबो गया छोड़ दिया क्या। मैंने बहुत जल्द ये जान लिया था कि जिस्म की फ़तह से दिल फ़तह नहीं किए जा सकते, और मोहब्बत की फ़तह तो दिलों की फ़तह में है। मैंने इससे मोहब्बत की है तो ये मेरी फितरी ख्वाहिश थी। वो मुझे चाहे, मुझसे मोहब्बत करे, ऐसा तो शायद क़यामत तक मुमकिन नहीं। वो नफ़रत करती है मुझसे। रूहान सा हो रहा था। सिला ने होंठ भींच लिए। अब मेरा दिल चाहता है मैं इसे सारी दुनिया की खुशियाँ दे दूँ।
میری مفلسی کا عالم یہ ہے کہ میں اسے ایک مسکراہٹ تک نہیں دے سکتا۔ اپنی خواہش کی جنوں خیزی میں نے کتنے دلوں کو اجاڑ دیا، تمہارا، خود اپنا، صلہ کا اور شہریار کا بھی۔ وہ صلہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ پلٹی تو حیدر ایک دکھ کی کیفیت میں بوجھل آواز سے کہہ رہا تھا۔ صلہ سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ وہ صحیح کہتا تھا، بہت دل اجڑ گئے تھے اور اب کوئی ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ بدلتے موسم ماہ و سال کے گزرنے کا پتہ دیتے رہے۔ اب موسم سرما کی آمد کے ساتھ عید الاضحیٰ کی بھی آمد تھی۔ شانزے شاپنگ کرنے گئی تھی۔ حیدر نے صلہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہا، مگر اس نے اسی بے دلی سے انکار کر دیا جو اسی شادی کے بعد اس کے دل میں اتر آئی تھی۔ یہ تو ذی الحج کی شام تھی جب ممی غیر متوقع طور پر اس سے ملنے چلی آئیں، اس کی عیدی اور بے تحاشا محبتوں کے ہمراہ۔ وہ تو ششتر ہی رہ گئی۔ آپ نے معاف کر دیا مجھے؟ اس کا گلا آنسوؤں سے بھرانے لگا تھا۔ بھلا والدین بھی اولاد سے خفا رہ سکتے ہیں؟ وہ تو تمہاری ضد نے ہمیں وقتی طور پر بدگمان کر دیا تھا۔ پھر حیدر نے مجھے ساری بات بتائی۔ قصور تمہارا نہیں تھا۔ خیر جانے دو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ممی اکیلی نہیں آئی تھی، ان کے ساتھ ڈیڈ اور آفاق بھائی بھی تھے۔ ان کی شادی عید کے بعد تھی۔ وہ لوگ انہیں انوائٹ کرنے بھی آئے تھے۔ آپ اب خفا تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ جب وہ لوگ جا رہے تھے، صلہ نے ممی کا بازو پکڑ کر ایک خوف کی کیفیت میں سوال کیا تھا۔ ممی نے سرد آہ بھری۔ اب تو خفا رہنے کا جواز ہی نہیں ہے بیٹے۔ مجھے بس اس بات کی تکلیف ہے، تمہیں اپنی دوست جتنی بھی عزیز تھی، مگر اس کی خاطر تمہیں پھر بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تمہارا سٹینڈرڈ نہیں تھا بیٹے۔ ممی واقعی ملول تھی۔ اس نے بھیجی ہوئی سانس کھینچی۔ یہ میرا نصیب تھا ممی، اور نصیب خدا کا طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا تھا، اس کی جزا سزا تو مجھے اللہ نے دی۔ میں نے صرف اپنی سہیلی کی خاطر یہ قدم اٹھایا۔ میں کبھی خود کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی شاید۔ میرا نام آپ نے صلہ رکھا تھا، پھر وہ کسی کے لیے بوجھ کیسے بن سکتی تھی؟ خیر آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ اس نے اپنے طور پر انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی رات جب وہ حیدر بیڈ پر اس کے برابر سونے کو آ کر لیٹا، صلہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا، مگر کیوں؟ اپنی زیادتی کا کچھ نہ کچھ ازالہ کرنے کی خاطر۔ صلہ مجھے احساس ہے میں نے تمہارے ساتھ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا جو کچھ ہو گیا اسے دہرانا بہت ضروری ہے؟ ہم بھول بھی سکتے ہیں حیدر۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ حیدر قدرے حیران سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ پرجوش بھی تھا اور خوش بھی۔ صلہ نے گہری سانس بھری۔ ایک سچ کچھ دن پہلے آپ نے بھی کہا تھا، پر بجائے شانزے سے اگر محبت مجھ سے کی تھی، اظہار مجھ سے کرنے میں کیا حرج تھا؟ وہ خفا ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر پہلے ٹھٹکا، خفت زدہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ تمہارے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ پتہ نہیں تم یقین کرتی یا نہ کرتی۔ کاش آپ نے بزدلی باقی کارناموں میں دکھائی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ اس کے دل سے ہوک نکلی۔ صلہ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں اتنا شرمندہ تھا کہ معافی مانگتا بھی کیسے، محبت کا اظہار کرتا بھی تو کیسے؟ میں نے تمہیں تم سے چھیننا تھا، چال بازی سے، دھوکے سے۔ وہ افسردہ ہونے لگا۔ اٹس اوکے حیدر، بھول جائیں۔ میں نے جان لیا کہ یہی قدرت کی رضا تھی۔ اب میں آپ کے اور شانزے کے ساتھ خوش ہوں۔ اس نے حیدر کے دل پر دھرا بوجھ سرکانا چاہا اور کامیاب رہی تھی۔ حیدر واقعی سب کچھ بھلا کر چہکنے لگا تھا۔ کل عید تھی، وہ جا کر شانزے کو بھی بلا لایا اور وہ چوڑیاں بھی نکال لائے جو اس نے خریدی تھیں۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ صلہ نے بھی خود کو خوش ظاہر کیا۔ اس میں حرج ہی کیا تھا؟ قربانی خوشی سے ہی تو دی جاتی ہے، ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ خوش نہیں تھی، خوشی ظاہر تو کر سکتی تھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، جبھی تو آج اس کی حیثیت یہ تھی۔ اللہ نہ چاہتا تو حیدر کچھ بھی کر لیتا، وہ صلہ کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ اللہ کا فیصلہ تھا، پھر اسے قبول کرنے میں قباحت کیوں؟ جب تک وہ نہیں سمجھی تھی ٹھیک تھا، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی تو سر جھکا لیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے دل میں گنجائش نکالنے والا اللہ اس کے دل میں محبت بھی جگا دے گا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔